Now starting with the first technical session, I would request CA Neerav Agrawal to please help me and in welcoming Sir CA Rajiv Gupta sir to the conference with a bouquet. We thank CA Rajiv Gupta for accepting our invitation, and I would like to introduce Sir. It's my honor and pleasure to introduce Sir. Sir is a data scientist, certified fraud examiner, obviously chartered accountant and CISA. He's a leader and subject matter expert in emerging technology risks, advanced data analytics, internal controls, governance, and in driving organization cultural change. He is currently working as a vice president and group head internal audits of Flipkart Internet, a Walmart group company. Prior to this, he has worked as senior vice president global audits at Diageo, head of internal controls for India and Southwest Asia at Coca-Cola, and assurance manager with PwC in India and London. He is the author of Technical Guide on Internal Audit of Beverage Industry, published by the Institute of Chartered Accountants of India. In year 2022, he has been recognized as one of the top 20 thought leaders in India in the domain of audits and governance. He is a guest speaker with various professional bodies including IIM Bangalore, ACFE, Institute of Chartered Accountants, ISACA, the Institute of Internal Auditors, and National Academy of Direct Taxes. So with big round of applause, I would request all to please welcome Sir. And Sir, I would request you to take the session ahead. Thank you so much, Sir. Good morning, everyone. Thank you Neeravji, thank you Abhinavji, thank you Charmi for inviting me here. I was sharing that Ahmedabad used to be my second home years ago. When I was part of the Coca-Cola company, we were setting up a mega plant here very near to Ahmedabad. When you're on the way to Baroda, around 40 kilometers from here, there is a village called Goblej. So Hindustan Coca-Cola has a mega factory there. I am one of those few that time managers who designed how the mega plant should look like. Because when the company acquired it from Parle, it was very small, and company wanted to make sure that in strategically located cities, the company has mega factories, and mega factories are the one which have more than 10 production lines, and each production line is like 720 BPM should be there. BPM means bottles per minute. So that much is the capacity which we planned that time, and I'm sure it's doing really well. So with that, welcome to this session on data analysis, visualization, and how we can use it for business. I'll just see if I can walk. Otherwise, आपका तो पता नहीं, I feel sleepy. Yeah, if I stand at one place, and I will keep it very informal. I have prepared many slides, and I can bore you with those slides. Second option is, on this subject, you ask me whatever doubts you have. Yeah, some of you would be into practice, some of you would be into data analysis already. Some of you may be working in industry, or some of you may be into something else, or maybe your own business. Yeah. So maybe if I get a whiteboard or something, I will note down and I will see if I can address some of your questions, right? Otherwise, in next hour or hour and a half, I will present my slides. You may get some of those slides, you may not get some of those slides, and then next speaker will come, right? So the advantage will not be there. And thankfully, the senior members who were standing at the back, they have settled down somehow, because when I speak in some of the international forums, you may be knowing they have parallel sessions going on. Yeah. So because they have so many speakers, they make sure that if there are say 2,000 participants, they have 200 to 500 sitting capacity in all the rooms. So parallelly 3 to 5 sessions are going on, and half of the members, they are standing on the door. You know why? Why? Sorry, say again, sir. हाँ, yes, कि ये अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो पैर बाहर निकाल के दूसरे में, दूसरा अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो तीसरे में. पहले मुझे बहुत बुरा लगता था
Then one day what happened, institute ACFE they suggested sir आपकी फ्लाइट तो इंडिया जाने की रात की है, आप बाकी सेशंस अटेंड कर लो रादर देन घूमना बाहर. तो आई थॉट yeah, that's a good idea. तो आफ्टर लंच आई अटेंडेड वन सेशन एंड आई फेल्ट वेरी बैड, यू नो व्हाई, बिकॉज मैं सबसे पहली सीट पे बैठ गया और मेरा मन कर रहा था भाग लूँ. अब सबसे पहली सीट से उठकर भागना, जैसे आप पांचों हैं, आपके लिए बड़ा मुश्किल रहेगा और पीछे वालों के लिए ईजी रहेगा. सो देन नेक्स्ट सेशन में आई डिड द सेम थिंग. आई जैसे वो सर खड़े हैं, मैं दरवाजे के पास ही खड़ा रहा कि अच्छा लगा तो बैठ जाऊंगा, नहीं अच्छा लगा तो निकल जाऊंगा. सो नाउ आई हैव गॉट यूज्ड टू, या कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप बाहर खड़े भी हो सकते हैं, दरवाजे पे भी हो सकते हैं, दैट्स ऑल फाइन. या सो कमिंग बैक टू टू ऑप्शंस लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव वन, I go with my flow, where I will be talking about data analysis, visualization. I will be talking about some of the stuff relating to blockchain as well. AI, ML also I will talk about little bit, and I will also talk about some of the real life use cases. And those of you who follow me on LinkedIn, you would see some of those. What I am going to present, even yesterday I have put in some of the examples. So some of the similar stuff I will be putting. Second option, ladies and gentlemen, is आपके mind में if there is any question, any doubt, please feel free to ask. We'll start the session with that because then you will have more of takeaway. Yeah, anybody, any question? Is on this subject? Yes, sir. हाँ जी. What one needs to do to become data scientist. Okay जी, ठीक है. अच्छा, what I will do, I will pick up those questions here जो larger audience के interest में है. So I think this question would be of interest to larger audience. What you need to do? हाँ जी sir. हाँ. Very good, very good. So it's a functional or a technical. ठीक है. हाँ जी, आप भी sir. हाँ. What is the kind of current scenario with regard to the data-driven decision making and the perceptual decision making? वेरी गुड क्वेश्चन. ये थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन होगा, ये अलग होगा, ये दोनों सिमिलर है ना. मैं इसका भी आंसर देता हूँ सर. हाँ जी. वेरी गुड, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3. बट सर यू हैव टू हेल्प मी बिकॉज आई डोंट हैव व्हाइट बोर्ड. अरे मतलब यू गाइस आर, अभी तो नहीं था हैं आप. That's the beauty. That's why Coca-Cola set up a mega plant here, you know. हाँ जी, पहला क्वेश्चन है डेटा साइंस करे कैसे, प्लस सर का क्वेश्चन था कि इज इट मोर अबाउट टेक्निकल या क्या था सर, टेक्निकल या ओ अच्छा, कि इट्स मोर अबाउट टेक्निकल है कि क्या है, लॉजिकल अपना सेंस लगाना है. सेकेंड क्वेश्चन इधर से आया था सर का, कहाँ गए सर? सर सेकेंड क्वेश्चन आपका था ना. हाँ जी. हाँ, क्या डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होता भी है कि खाली कॉन्सेप्ट है, मेन मुद्दा ये है सर. थर्ड क्वेश्चन इधर से आया था पीछे से सर, आपका इधर से. हाँ जी. व्हेन यू रिसीव द डेटा, ओके, फर्स्ट फ्यू स्टेप्स, सो दैट इज अबाउट ईडीए. आई विल टॉक अबाउट दैट. चलिए सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है. और भी क्वेश्चन जो माइंड में आएंगे वो आंसर देंगे. डोंट वरी अबाउट माय स्लाइड्स. वो अगर आपके क्वेश्चंस आंसर हो गए तो स्लाइड्स में हाफ एन आवर में भी सब कवर कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है. हाँ जी. बट आप में से किसी ने ये नहीं पूछा, शायद मे भी शर्मो शर्मी एम्बेरसमेंट सोचा होगा कि होगी, कि पढ़ना ही क्यों है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी हैं, इतना मैथमेटिक्स किया, अकाउंटिंग हमारे हम हाथों में ही करोड़ों की कैलकुलेशन कर लेते हैं, और वो भी हम गुजराती, मतलब एक तो सीए ऊपर से गुजरात में बैठे हैं. तो डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस आप लोग हमारे को ऐसा क्या नया सिखा लोगे, किसी ने ये नहीं पूछा. नहीं, मे बी शायद मैं फैकल्टी हूँ तो थोड़ी रिस्पेक्ट दे दी होगी, ये भी हो सकता है. नहीं, कंप्यूटर के ज़माने में नहीं. आप तो मेरा वाला पॉइंट, मतलब आप मेरे को डिफेंड कर रहे हो कि आप आए हो तो अच्छा ही है. नहीं, हमारा अंडरस्टैंडिंग पहले से है. हाँ, आपका अंडरस्टैंडिंग पहले से है ना कि कंप्यूटर के ज़माने में कैलकुलेटर. तो आप किसको कैलकुलेटर बोल रहे हो, डेटा एनालिसिस को? हाँ हाँ, वो कैलकुलेटर हुआ कि क्या हुआ? तो वो कैलकुलेटर हुआ. हाँ, करेक्ट. हाँ, नहीं तो अच्छा आप कह रहे हो कि ज़रूरी है जो मैं सेशन कर नहीं, मैं कह रहा हूँ ये क्यों नहीं है, पूछ रहे कि क्यों ज़रूरत है. आज की डेट में आपका कौन सा काम रुक रहा है बताइए?
आज आप जो भी क्लाइंट को मैनेज करते हैं या जो भी, ओ माय गॉड, फ्यूचर रेडी, नहीं सही है, सही है। नोन अननोन, अननोन अननोन भी हो सकता है ना, अननोन अननोन, ये भी सही है। आप लोग एक्चुअली मच मोर एडवांस एज कम्पेयर टू सम ऑफ द सिटीज वे हैव यू नो टॉक्ड अबाउट दिस, क्योंकि जैसे ही मैंने ये बोला कि करना क्यों है, मेनी पीपल सेड यस सर, पूछना तो यही चाह रहे थे बट पूछा नहीं। बट आप दोनों ने तो डिफेंड किया कि नहीं ये सेशन जरूरी है, बट मैं पूछ रहा हूँ क्यों जरूरी है, ऐसा आपका क्या रोक रहा है अदर देन फ्यूचर रेडी? फ्यूचर रेडी तो बहुत चीजें हैं, नहीं ये प्रेजेंट हो गया है। ये भी बहुत ही हाई लेवल आंसर है। रियल में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी सर। वेरी गुड सर, ये स्पेसिफिक आंसर आया, मतलब आंसर आप सबके सही हैं, बट जैसे वो सर ने एकदम स्पेसिफिक आंसर दिया, एग्जैक्ट उनकी प्रॉब्लम बताइए, ऐसा लग रहा है कल ही उनको प्रॉब्लम हुई है ये। दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर, बिकॉज सी अगर सी ओला उबर इंडिया में दुनिया में क्यों सक्सेसफुल हुए? देयर वाज अ प्रॉब्लम व्हिच दे सॉल्व्ड, अदरवाइज तो टैक्सीज पहले ही थी। ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन क्यों सक्सेसफुल हुए? भाई माल तो पहले भी खरीदते थे, टमाटर, आलू, प्याज, जो भी घर के कपड़े जो खरीदने हैं, यू आर ऑलरेडी बाइंग इट, बट व्हाई दे वर सक्सेसफुल? बिकॉज दे सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम। तो अनलेस दिस सेशन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम देन इट यू नो अदरवाइज टाइम पास है। तो सर ने जैसे एक बड़ा स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताई कि ये प्रॉब्लम है, व्हाट एल्स, क्यों करना है? बट नहीं, ये तो सर बेनिफिट की बात है, पहले प्रॉब्लम होगी तो बेनिफिट पे जाएंगे ना। आपको प्रॉब्लम क्या है? जैसे हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, पहले हम इशू देते हैं, इशू के बाद बोलते हैं कि इसका रिस्क क्या है, एंड देन वी से कि रिकमेंडेशन। तो ये तो रिकमेंडेशन होगी कि डेटा एनालिसिस पढ़ना चाहिए, बट क्यों पढ़ना चाहिए? डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, ये भी एक प्रॉब्लम है, करेक्ट। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है? डिफरेंट फॉर्मेट, हाँ जी, नहीं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा है? फिजिकल फॉर्मेट, ओके बोल सकते हैं, हाँ जी, ठीक है। और व्हाट एल्स? पीडीएफ जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है सर, हाँ जी सर। नहीं सर, नहीं सर, नो, डिसीजन तो बहुत दूर की बात हो गई। मैं बता देता हूं, हाँ जी सर, लास्ट अटेम्प्ट। नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो है जो टेबल के फॉर्म में नहीं है, सिंपल। टेक्निकल डेफिनेशन आप गूगल करेंगे आपको बहुत मिलेगी, सिंपल डेफिनेशन ये। अब मैंने पीडीएफ को या क्यों नहीं बोला, या वर्ड डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं बोला अनस्ट्रक्चर्ड है? क्योंकि आप टेबल बना हुआ है, आप इजीली उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, अब फिर अनस्ट्रक्चर्ड का एग्जांपल क्या हुआ? अगर आप सोशल मीडिया की पोस्ट का डेटा उठाते हो, इट इज नॉट इन द टेबुलर फॉर्म, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में होंगे, हो सकता है बीच में कॉमा लगाओ, या हो सकता है स्पेस हो या सेमीकोलन हो, कुछ भी हो सकता है, बाय विच यू विल बी एबल टू डिवाइड, बट इट इज नॉट इन अ टेबुलर फॉर्मेट। सीएसवी अनस्ट्रक्चर्ड है कि स्ट्रक्चर्ड है? गलत, स्ट्रक्चर्ड है। मैं देख रहा हूं कि ये सब साथ में है, स्ट्रक्चर्ड है। वाई? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रक्चर टू इट, इट कैन वेरी इजिली बी कन्वर्टेड इनटू टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सोशल मीडिया से जो आप लेते हैं, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। जो अच्छा, अब सर ने जैसे बोला कि मल्टीपल सिस्टम, नो सर, एज लॉन्ग एज सर वो उन सिस्टम से जो आप डेटा ले रहे हैं इट इज टेबल। फॉर एग्जांपल टैली से आप रिपोर्ट निकालते हो, टेबल की फॉर्म में निकलेगा। दूसरी कंपनी का एसएपी में डेटा हो सकता है, वो भी टेबल में दे रहा है। तो चाहे आप 10 अलग अलग सिस्टम से ले लें, एज लॉन्ग एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, इट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है जी। तो हम इस मुद्दे पे तो हम क्लियर हैं दैट डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि डेटा साइंस को अप्रोच कैसे करें। देखिए, डेटा साइंस, बिलीव मी, इज एन ओशन, बिकॉज इट इंक्लूड्स very advanced version of statistics you may have learned in either CA or BCom. मैं भूल गया कि कहाँ करी थी, बट मैंने भी करी थी। एंड आई वॉज शेयरिंग विद चार्मी दैट स्टैटिस्टिक्स में हमने जब स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सीखा था, तो मुझे लगा जिंदगी में बस ये बीकॉम का एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद तब तक जरूरत नहीं पड़ी जब तक मैं डेटा साइंटिस्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि तब तक मैं तब तक मैं क्या बोला था मैंने, तालाब का मेंढक था। यस, टिल द टाइम यू डोंट लर्न डेटा साइंस you feel you can do anything, but when you learn data science it's an ocean, right? Okay, करना कैसे है? Step number 1, सबसे पहले तो buy a very economical course,
from a site like Udemy. I love Udemy, not because मेरे को कोई फीस मिलती है, because you can learn anything in 400 rupees. So कोई रिस्क नहीं है, आपको समझ आया तो समझ आया, नहीं तो 400 रुपए, राइट? तो अच्छा, why I am saying Udemy and why I am saying starting with that, because अभी आप सब जोश में हैं, सैटरडे मॉर्निंग में पहला सेशन है, बंदा कोई बैंगलोर से आया तो जोश जोश में हाँ कर दी, बट रियल कोर्स वेरीज फ्रॉम 60,000 रुपीज टू 5 लाख रुपीज, द रियल कोर्स। तो पता लगा आपने 5 लाख रुपए लगा दिए। मैंने एक सेशन दिया मुंबई में, तो वहाँ पर मेरे बाद जो स्पीकर थे वो एक टायर कंपनी के ऑडिट हेड थे। मेरा सेशन सुन के, मैडम मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मेरा सेशन सुन के उनको जोश आ गया, कहते राजीव तू बता तूने कहाँ से किया? मैंने कहा सर यहाँ से किया। उन्होंने भी 4.5 लाख रुपए देके उसी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करा लिया। 1 महीने बाद मेरे को फोन करके खूब गालियां दी, या तूने बुजुर्ग आदमी को कहाँ फंसा दिया है? कह रहे यार इतनी कोडिंग। तो फिर मैंने उनको बोला सर आपने ना मेरी पहली बात नहीं सुनी थी कि पहले POC कर लो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, विच इज फ्रॉम यूडेमी टाइप। 400 रुपए लगाओ, कल संडे है, 20-22 घंटे का उसका कोर्स होता है। अच्छा कौन सा खरीदना है? जैसे आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे देखते हो ना, ऊपर डेटा साइंस जैसे डाला, जिसकी भी स्टार रेटिंग सबसे ज्यादा है वो कोर्स खरीद लेना। जैसे अमेजॉन में भी ऐसे करते होगे, फ्लिपकार्ट में भी ऐसे करते होगे, राइट? तो मैं भी ऐसे करता हूँ यूडेमी में, जिसकी स्टार रेटिंग सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा लोगों ने दिया। ऐसा नहीं 2 लोगों ने दिया, पता लगा वो खुद था और उसका भाई था, वो भी नहीं होना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ यूजर, वो आप 22 आवर्स का कोर्स एक खरीद लो और कल ही कल में, चाहे आप वॉक कर रहे हो उसको कानों में चाह के सुनते रहो। आइडिया इज, क्या आप टेक्निकल डिटेल से बोर हो रहे हो या मजा आ रहा है, आज नया कुछ सीखा? फॉर एग्जांपल RFM एनालिसिस, हाउ मेनी ऑफ यू नो? यूनिवेरिएट बाईवेरिएट एनालिसिस, हाउ मेनी ऑफ यू नो? नहीं है, बहुत सिंपल, मैंने बस टेक्निकल नाम ले लिए, आप करते हो ऑलरेडी, बट आपको बस नाम नहीं पता। वो वहां पर सीखने को मिलता है और वहां पर स्ट्रक्चर सीखने को मिलता है कि कैसे उसको स्ट्रक्चर्ड वे में करना है। तो पहले स्टेप नंबर 1, सर आप यूडेमी, सर एंड मैडम आप यूडेमी पे जाइए, वहां से 400 रुपीज 365 का कोर्स खरीदिए। देन इफ यू लाइक इट, लगे हाँ ये तो दिस समथिंग विच आई वांट टू डू, देन यू कम बैक टू मी। या उस टाइम पे आप सपोज 1 महीने बाद रिवर्ट करते हो मुझे, 2 महीने बाद या 1 साल बाद, उस टाइम पे जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट चल रहा होगा इन इंडिया विद द मोस्ट इकोनॉमिकल फीस, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस टाइम पे। ठीक है, तो मैंने 2 लोगों को ऑलरेडी सजेस्ट किया है, द वन विच आई फेल्ट, जहां से मैं खुद MSc कर रहा हूं। सो नाउ आई एम डूइंग MSc इन डेटा साइंस फ्रॉम जर्मनी, जिनका इंडिया में एक टाई अप है। सो आई लव the way they are taking care of the students and the quality of faculty, so I recommend it to 2 others. So when you do data science, please remember the very first certificate you get is masters. So don't confuse it with master and MSc. MSc is a degree, masters is a certificate. So they will give you a certificate which will say masters in data science or masters in data science and business analytics, जो भी आप specifically course करोगे। तो first question का second part था, is it technical? Yes, it is very technical, yeah, but what I found for chartered accountants and hardcore engineers, it is not tough. आप मतलब जो आदमी CA कर चुका है उसके लिए क्या टफ है? कुछ नहीं, राइट? MBA के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो गोता खा सकता है, या कोई इसमें मतलब अगर आप में से कोई MBA दिल पे लेने वाली बात नहीं है, मतलब गोता खाना पड़ सकता है, बट स्टिल you will be able to do. So that is about first. Second is data driven organizations. यहाँ से क्वेश्चन आया था ना, हाँ जी। न्यू एज ऑर्गेनाइजेशंस जो आज की जमाने की कंपनीज हैं, दे आर नथिंग बट डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस। मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा, और दोज ऑफ यू हु फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, कल मैंने पोस्ट जो डाला है उसमें जो एग्जांपल दिया है, इट इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस। या अगर आपने नहीं देखा तो अगर हमारे को टाइम मिलेगा मैं आपको एलैबोरेट करूंगा वो एग्जांपल आज। तो जो ओल्डर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मतलब पीढ़ियों से चलती आ रही हैं, see they have developed a different sense of running the organization, उन gut feeling, experience, understanding of market, वो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस में सही चल रहा है, राइट? बट द न्यू एज बिजनेसेस वेयर you are trying to solve a problem, when you are trying to solve problem, data driven आपको बनना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑयल एंड गैस, राइट? हमारा रिलायंस हो गया, अदानीज हो गए, उनको डेटा ड्रिवन बन के क्या करना है? उनका बिजनेस वैसे ही चलता रहेगा,
ऑयल एंड गैस वो चाहिए, राइट? जब तक ह्यूमन बीइंग है ऑयल एंड गैस हमारे को चाहिए. सो नॉट, आई मीन इफ आई मेक अ कंपैरिजन, इतना ज़्यादा डेटा ड्रिवन नहीं भी होंगे तो भी चलेगा. बट नाउ थिंक ऑफ टेलीकॉम कंपनीज, थिंक ऑफ बिग बास्केट, और क्या है, स्विगी, जोमेटो. अब इनको अगर ये देखना है कि ऑफर्स किसको देने हैं, आप ओके, लेट मी टेक अ स्टेप बैक. आपके P&L स्टेटमेंट में एक्सपेंस साइड होती है. एक्सपेंस साइड में हर एक एक्सपेंस कहां करना है, कितना करना है, कैन बी वेरी इजिली डेटा ड्रिवन एंड शुड बी डेटा ड्रिवन. एग्जांपल, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट. एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में ये जो कंपनीज होती है कूपन्स पे बहुत पैसा खर्च करती हैं, डिस्काउंट्स पे. अब इनको डिसाइड करना है कि किसको एक ऑप्शन है कि हर किसी को डिस्काउंट दो, जो भी 500 रुपए से ज्यादा का पिज्जा ऑर्डर करे उस हर किसी को 10% डिस्काउंट दे दो. इजी है. कोई डेटा चाहिए इसमें? कोई डेटा नहीं चाहिए. नो डेटा ड्रिवन डिसीजन. लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि मैं डिस्काउंट भी दूं, ज्यादा कस्टमर जिससे एक्वायर कर सकूं, लेकिन डिस्काउंट का मेरा खर्चा कम हो, तो उसमें डेटा कैसे यूज कर सकते हैं? वो यूज कर सकते हैं कि पहले ज्योग्राफी वाइज देखा जाए. क्या अहमदाबाद से हमारे ऑर्डर्स अच्छे आते हैं? आते हैं. क्या हमारे को प्रेफर किया जाता है वर्सेस जोमेटो? हाँ. तो यहां पर ऑफर दें कि नहीं दें? दें कि नहीं दें? नहीं दें. ये तो ऑलरेडी खरीद ही रहे हैं हमसे, तो यहां पर पैसा बचा लो. तो यानी जहां पर कस्टमर इज बेस्ड इन अहमदाबाद, वहां पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा. पता लगा कि आपका जो नेबरिंग सिटी है सूरत, वहां पर लोग हमसे माल नहीं खरीद रहे, वहां पर पिज्जा ही नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, या जो भी है, हमारा सेल बहुत कम आ रहा है, तो वहां पर डिस्काउंट दें कि नहीं दें? देंगे. चलिए अब अहमदाबाद पे वापस आते हैं. अहमदाबाद में जब वापस आए तो अब हम अनदर डेमोग्राफिक एंगल देखेंगे, एज ग्रुप देखते हैं. तो वहां पर हम स्लाइस एंड डाइस कैसे करते हैं? 18 से 25. उसके भी रीजंस हैं कि व्हाई वी डू दैट वे. 25 से 40, 40 से 55 एंड देन ओल्डर. इसके साइंटिफिक रीजन है कि इस तरह से क्यों किया जाता है. अब वहां पर जब हमने अहमदाबाद में जब ये डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो पता लगा कि 55 एंड अबव वाले तो मस्त ऑर्डर कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन लोएस्ट ऑर्डर हमारे को आ रहा है 18 से 25. यानी जो फ्रेश, जो भी कॉलेज से निकल के अभी जॉब जिन्होंने स्टार्ट करी, वो हमसे माल नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन जो एजेड लोग हैं वो हमसे माल खरीद रहे हैं. कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि पीपल आर एसोसिएटिंग अस विद सीनियर सिटीजन? क्या हम यंग ब्रांड नहीं लोगों को परसीव हो रहे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले तक मर्सिडीज का ये परसेप्शन होता था कि जो एक आदमी, समवन हु हैज अराइव्ड, समवन हु हैज अचीव्ड सक्सेस, वो मर्सिडीज लेता था. परसेप्शन थी. और जो यंग है, जिनके पास अभी यह मस्त पैसा आया है, वो BMW ले रहे हैं. ये परसेप्शन थी. ये मर्सिडीज ने एक्नॉलेज किया है, एंड दैट्स व्हाई दे चेंज देयर एडवर्टाइजिंग अप्रोच. वो चलो अलग बात है. सो अभी डेमोग्राफिक एनालिसिस किया तो पता लगा कि 18 से 25 वाला स्विगी से माल नहीं खरीद रहा है, लेकिन जो जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वो लोग हमारे से माल खरीद रहे हैं. तो अब हम क्या करेंगे? या तो अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है वो चेंज करेंगे. करेक्ट. तो हो सकता है एडवर्टाइजमेंट में शायद हम जाने अनजाने खाली एजेड लोगों को दिखा रहे थे, हो सकता है, आई डोंट नो. तो नाउ वी विल ब्रिंग यंगर. फॉर एग्जांपल पेप्सी को, वो पेप्सी को कभी तो उसको ले आता रणबीर कपूर को, कभी आप समझ गए ना, वो यंगिस्तान ऐसा कुछ है ना. व्हाई दे आर डूइंग इट? दे वांट टू एसोसिएट देयर ब्रांड विद यंग पीपल, राइट. और यंग पीपल क्यों? व्हाई यंग पीपल? व्हाई पेप्सी वांट टू एसोसिएट देमसेल्फ विद यंग पीपल? लंबा टाइम तक मेरे जैसे लोगों को ऐड दिखाने का क्या फायदा, या मेरे जैसे लोगों को ऐड में दिखाने का क्या फायदा? क्योंकि शुगर तो या तो हो चुकी होगी या होने वाली होगी. करेक्ट. तो कस्टमर तो वो है ही नहीं. तो कस्टमर कौन है? जो यंग है, जैसा सर आपने बोला, और उसको आज की डेट में शुगर वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और 10, 15, 20, 30 साल तो भी होने भी नहीं वाली है होपफुली. तो इसलिए वो डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में इसको बोला जाता है CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. दैट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डेटा साइंस. कंपनीज को बोला जाता है, न्यू एज कंपनीज को, कि वहां पर इन्वेस्ट करो जहां पर कस्टमर की CLV सबसे ज्यादा है. तो सपोज आप एक कोक हर रोज खरीदते हो 10 रुपए की, लेकिन हमें पता है कि आप अगले 30 साल खरीदने वाले हो, वर्सेस
वो कस्टमर जो आज 100 रुपए की खरीदता है लेकिन पता है सिर्फ 6 महीने और खरीदेगा, उसके बाद शुगर हो जाएगी, राइट? तो किस कस्टमर की CLV ज्यादा है? पहले वाले कस्टमर की जो अगले 30 साल तक खरीदने वाला है, राइट? सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। कंपनीज आज की डेट में डेटा ड्रिवन डिसीजंस 2 रीजन से कर रही हैं। नंबर 1, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकें। नंबर 2, अच्छा इसी का सब पार्ट, वो जो कस्टमर एक्वायर कर लिए उनका वॉलेट शेयर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आए। दिस अगेन इज अ न्यू एज कंपनीज कॉन्सेप्ट कि हमारी दुकान में तो घुस गए, हमारी दुकान में खाली 10 रुपए का माल खरीद के जा रहे हैं या 1000 का खरीद रहे हैं। दैट्स कॉल्ड वॉलेट शेयर। कि अगर उसने टोटल, जब वो मार्केट में निकला वो कस्टमर, तो वो अगर सपोज वो सोच के निकला था कि मैं 1000 रुपीज आज मार्केट में खर्च करके आऊंगा, तो मेरी दुकान पे कितना खर्च कर रहा है, दैट्स कॉल्ड वॉलेट शेयर। सो रेवेन्यू साइड पे ये दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। अब एक्सपेंस साइड पे आते हैं, वहां पर है अगेन मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकूं विद लीस्ट पॉसिबल एक्सपेंस। किसी के पास भी अनलिमिटेड बजट नहीं है, राइट? सो दीज आर द टू प्राइमरी रीजंस फॉर विच डेटा इज बीइंग यूज्ड। सर दिस आंसर्स योर क्वेश्चन है? ओके जी। फिर आते हैं सर का क्वेश्चन था ऑन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। आपने क्या बोला था कि जब डेटा आया तो उसको क्या करें? हाँ, है ना? ये कॉमन क्वेश्चन है या खाली इन्हीं का टेक्निकल क्वेश्चन है? अब डेटा आ गया, अब क्या करें? हमें तो खाली पिवट लगाना आता है, वीलुकअप लगाना आता है, राइट? आई वॉज देयर फ्यू ईयर्स गो। उसमें क्या, कौन सी मतलब शर्म वाली क्या बात है? एंड आई यूज टू फील प्राउड कि हाँ बड़ा सुंदर सा मैंने वो क्या बनाते थे उसको, टेबल को क्या बोलते हैं उसको, पिवट। हाँ हाँ। और वीलुकअप लगा के तो मेरे को ऐसी खुशी मिलती थी कि सच में कि मैंने ताजमहल ही बना दिया। आई एम टेलिंग यू दैट आई यूज टू फील दैट एज अल्टीमेट सक्सेस कि वो #REF नहीं आया, ऐसे ही आता था ना RE या NA। हाँ, तो सो कुछ साल पहले तक मैं भी ऐसे ही था, कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मैं तो हमेशा स्टार्ट और एंड दोनों मेरा इसी पे हो जाता था, वीलुकअप और पिवट पे। करना क्या है? 3-4 चीजें तो आप किसी भी डेटा पे अभी कर सकते हो आफ्टर दिस सेशन। अभी अब आपको टी ब्रेक मिलेगा। सबसे पहले तो उसका हिस्टोग्राम बना लो, ठीक है जी? हिस्टोग्राम पता है ना, वो बार्स सुनने में बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यार अजीब क्या बता दिया आपने, बट अमेजिंग टूल है। इसको हिस्टोग्राम भी बोलते हैं। इसको बड़े तरीके से अगर आप डेकोरेट करना चाहें कि यार मेरे बॉस को हिस्टोग्राम पसंद नहीं आएगा, तो स्कैटर प्लॉट बना लो। बड़े सारे प्लॉट ही प्लॉट है, आप गूगल कर लेना, कोई टेंशन नहीं। पर्पस सबका सेम है कि जो आपका डेटा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना। क्यों? एग्जाम्पल, कोई भी डेटा ले लो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, परचेज ऑर्डर्स अप्रूवल। आप परचेज ऑर्डर, आप प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का ऑडिट कर रहे हैं, आपने PO अप्रूवल वाले कॉलम को, आपने जो डेट टाइमिंग वाला कॉलम है, ठीक है, आपने उसको प्लॉट पे डाल दिया और हर 1 घंटे का 1 बार है। तो घंटा कब से स्टार्ट होता है? सुबह के 1 बजे से, और रात के 11:59 पे वो तक वो जाएगा। तो यानी इससे 24 बार्स होंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? सबसे ज्यादा बार कौन से घंटे से स्टार्ट होकर कौन से घंटे तक होने चाहिए अप्रूवल के? हाँ जी, वर्किंग आवर्स मे बी 10 o'clock से लेकर 6 o'clock, व्हाटएवर जो भी आपकी कंपनी का टाइम है। शायद किसी ने ओवर टाइम किया होगा तो 1-8 घंटा आगे, 1-8 घंटा पीछे। लेकिन अगर आपको ये दूर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको अगर लॉन्गर टॉलर बार्स आपको दिख रहे हैं रात को 2 बजे, करेक्ट है सर, एक्सेप्शंस, राइट? अब ये चीज तो आप एक्सेल में फिल्टर लगा के भी देख सकते हो, करेक्ट ना? बट दैट विल नॉट बी विजुअली सो इजी टू कैच। यहां पर आपने, और ये एक्सेल में रेडीमेड है, एक ऊपर टैब होती है और टैब में चार्ट्स बहुत सारे हैं, आप जिस चार्ट से चाहें खेल लें। पर्पस है, आपके पास कोई भी डेटा आया, उस डेटा में जितने भी न्यूमेरिक फील्ड्स हैं, ठीक है, उन न्यूमेरिक फील्ड्स की रेंज बना के बार चार्ट बना लो। आपको कल ऐसी इनसाइट मिलेगी जो शायद आपको पहले नहीं मिली थी। किस कॉलम पे बनाना है? जो भी न्यूमेरिक कॉलम है। सीरियल नंबर छोड़ देना, सीरियल नंबर भी न्यूमेरिक दिखता है बट उसका कोई फायदा नहीं है। और एक रेंज बना लेना, है ना? वो रेंज होती है ना 1 से 100, 1 से 200, और उसके बार्स बना लो। तो कोई भी डेटा हो, आप मेरे को चैलेंज कर सकते हो, कोई भी डेटा हो उधर वो यूज हो जाएगा। सेकंड जो आप काम इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इज बाईवेरिएट एनालिसिस। या अभी जो मैंने आपको बताया वो यूनिवेरिएट था। यूनि मीन्स 1,
वेरिएट मीन्स वेरिएबल. व्हाट इज वेरिएबल? कॉलम. हम डेटा साइंस में हर चीज को टफ कर देते हैं, ऐसा है नहीं. यूनिवेरिएट मीन्स एक कॉलम को उठा के स्टडी करना. बाय मीन्स तो दो कॉलम में एक कॉलम एटलीस्ट न्यूमेरिक होना चाहिए. एक कॉलम न्यूमेरिक होना चाहिए. तो अगर आपने एक टेबल डाउनलोड किया सर, आपने टैली से, सर लास्ट में सर, आपने टैली से एक टेबल डाउनलोड किया जिसमें 10 कॉलम है. मान लेते हैं कि 10 के 10 न्यूमेरिक हैं, तो कितने आप बाईवेरिएट एनालिसिस कर सकते हैं? हाँ जी, नहीं, कितने? 9 कॉम्बिनेशंस. कितने? 9. अरे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, करेक्ट ना? मोटा मोटा मान लेते हैं 20. आपने पहला और सेकंड कॉलम ले लिया, उसका बाईवेरिएट एक टेबल वो बना लिया, डायग्राम. फर्स्ट और थर्ड 2 कॉलम अब दोबारा ले लिए, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट फिफ्थ, फर्स्ट सिक्स्थ, फर्स्ट सेवंथ, फर्स्ट 10th. तो ज्यादा बन जाएंगे, 20 नहीं होंगे, फिर ज्यादा हो गए. कितने? 10⁻², 100 नहीं, बट वो तो हाँ, इसमें कुछ परमुटेशन भी हो गए ना. अपने को कॉम्बिनेशन चाहिए, तो कॉम्बिनेशन कम होते हैं. 10C2 नंबर बता दो. मतलब मोर देन 20 होंगे, लेस देन 100 होंगे. बट आप लॉजिक समझ गए, यस और नो. ये बहुत सिंपल है, लेकिन बिलीव मी आपको ऐसा इंसाइट मिलेगा. नॉट इन ऑल 45 चार्ट्स, 2-3 तो ऐसे निकलेंगे जो आप कहोगे इसको मैं कल सुबह जाके पूछता हूं, ये ऐसा क्यों हुआ. बट ये तो भी फर्स्ट है. इसके बाद अच्छा नहीं, मैं इसमें बार चार्ट बनाऊंगा, पीछे तक नजर आएगा. अरे वाह यार, आपके पास सब हर चीज का सोल्यूशन है यार. मतलब मानना पड़ेगा कि कोका कोला ने भी क्यों डिसीजन लिया था. मतलब इतने दूरदर्शी कंपनी. मैं बात कर रहा हूँ 2007 की. 2007 में हमने इस फैक्ट्री को मेगा प्लांट बनाने का डिसीजन लिया था. आज हम 2023 में, मुझे आज पता लग रहा है कि क्यों लिया था. वेरी गुड. हर चीज का सोल्यूशन है आपके पास. या ठीक है जी, ओके. तो ये फर्स्ट हो गया. सेकंड मैं भूल गया. कोई मेरा लिंक्डइन पोस्ट खोलेगा क्या? क्या उसमें लिखा था मैंने? हाँ, कॉम्बिनेशन. वो बाईवेरिएट में मैंने कवर कर दिया. फिर और आप क्या कर सकते हैं, जब आपको इनिशियल डेटा मिला, हाँ जी, आउटलायर्स मैंने बता दिए ना. आउटलायर्स हमने डिस्कस कर लिए, राइट? 2 बजे वाला आउटलायर भी डिस्कस कर लिया. सो टू स्टार्ट विद ये आउटलायर्स, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एनालिसिस आप इससे स्टार्ट करिए, राइट? एक और कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उसके लिए मेरे को डीपर में जाना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करते हैं, मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, राइट? अगेन ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, बट उसको आप यूज कहां करेंगे वो थोड़ा सा जब कोई टेक्निकल सेशन होगा कभी तो तब उसमें जाएंगे. आप नोट कर लो, एज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इसमें ना 5 मेजर्स होते हैं. 5 क्या है? एक रेंज मीन्स हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. अब आप सोचोगे यार कि कैलकुलेट तो कर लिया, बट फायदा क्या है? फायदा कभी जब टेक्निकल, जब आप वो यूडेमी का कोर्स खरीदेंगे आपको उसमें पता लगेगा. सबसे पहला रेंज, मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन. ये 5 मेजर्स बहुत काम आते हैं, वेरी यूजफुल. आप एक बारी बस समझ गए कि ये करना क्या है इसका. चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं क्विकली. मेरा 11:30 तक है ना टाइम, ठीक, बहुत बढ़िया. एक एग्जांपल ले लेते हैं. हाँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन मैं रिपीट करता हूं. रेंज, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, 5. और ये 5 का ना पूरा गुच्छा ही होता है. आप जब पाइथन की कोडिंग सीखेंगे, एक कमांड चलाएंगे, 5 निकल के आ जाता है, टेबल आ जाता है पूरा. उसमें एक्स्ट्रा भी कुछ होता है, बट ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट है. स्टैंडर्ड डेविएशन का एग्जांपल बताता हूं. हाँ जी, तो सर आप इधर थोड़ा सा अपना कैमरा मारिएगा. एक स्टूडेंट है जी ए और एक स्टूडेंट है बी. अभी हम इन दोनों के सीए एग्जाम्स की रिजल्ट्स का इवैल्यूएशन कर रहे हैं. ए ने सपोज, सही फाइनल में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं आजकल? एफएम होगा एक तो, अकाउंट्स, और बताइए ऑडिटिंग है, टैक्स. सर मैंने बहुत साल पहले किया था. ठीक है, चलिए मानते 4. उसके एफएम में आए 50 और सेकंड वाले के आए
80, वैसे आ नहीं पाएंगे शायद इतने, बट चलो मान लेते हैं। अकाउंट्स में इसके आए 45, इन भाई से आए 40, फिर ऑडिट में 42 और इधर 70। टैक्स में तो आ जाते हैं ना नंबर के नहीं आते हैं? आ जाते हैं। तो ये बेचारा तो फिर भी 49 ही ला पाया, नहीं लेकिन पास नहीं हो पाएगा ना फिर, ये पास भी तो कराना है, पास भी करना है। चलिए 60 कर दें। अब मान लीजिए ना कि इंस्टीट्यूट ने 40% कर दिया पास के लिए, वैसे नहीं होगा जो भी है, मतलब ठीक है। और इसके आए 40। आप कॉन्सेप्ट समझिए, मतलब टेक्निकल में क्यों जाते हैं, ठीक है जी। और मान लेते हैं कि समहाउ दोनों की परसेंटेज सिमिलर आई। ज्यादा स्कोर्स में वेरिएशन किसके में है? बी के स्कोर्स में ज्यादा वेरिएशन है, ए कंसिस्टेंट है, राइट। और मान लेते हैं कि दोनों के स्कोर्स इस तरह से थे, प्लस माइनस करने के बाद जब हमने एवरेज निकाली ऑलमोस्ट सेम थी। हम जब बिजनेस डिसीजंस लेते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि क्योंकि दोनों की एवरेज सेम है, अब ये मान के चलते हैं ये दोनों स्टूडेंट बन गए हमारे सेल्स मैनेजर्स, ठीक है जी। और इनकी 4 हमने इनको सिटीज दी थी इंक्लूडिंग अहमदाबाद, कि तुम इन चारों में जाके माल बेच के आओ हमारा। तो मिस्टर ए ने किसी एक जगह 60 यूनिट बेचे, कहीं 45 बेचे, कहीं 42 वगैरह वगैरह। दूसरे ने एक में 80 बेचे, एक में 40, एक में 60। मतलब सेकंड वाला जो हमारा सेल्स मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस क्या है? फ्लक्चुएटिंग। लेकिन दोनों का, चारों स्टेट्स का हम टोटल कर लें, चारों सिटी में दोनों ने जो माल बेचा सब मिला के ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। बिजनेस वर्ल्ड में जब डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होती है तो किसको ज्यादा रिलायबल माना जाएगा? ए को। ये आपने अपनी नेकेड आई से इसलिए देख लिया क्योंकि छोटा सा ही डेटा सेट था। बिजनेस में एग्जैक्टली जो भी आपने बोला वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा किसका है? स्टैंडर्ड डेविएशन का हिंदी में बताऊं मतलब? मीन से डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस। जो अपना मीन है उसका, मीन दोनों का सपोज मान लेते हैं, लेट्स प्रिज्यूम है कि दोनों का मीन है 50, मीन एवरेज दोनों का मान लेते हैं 50 एवरेज है। किसकी परफॉर्मेंस, इन दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है एज कंपेयर टू मीन? बी की। तो जब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हायर किसका आएगा? बी का। बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हम उस ऑप्शन को, वो चाहे ऑप्शन ह्यूमन बीइंग हो या साइट हो, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन। सपोज आप 2 डिसीजन लेना है कि अहमदाबाद में इन्वेस्ट करें कि सूरत में करें, मिस्टर ए पे इन्वेस्ट करें कि मिस्टर बी पे करें, मिस्टर ए को इंसेंटिव दे कि बी को दें, वॉट एवर डिसीजन, वेन एवर यू हैव चॉइस। जिस ऑप्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होता है उसको प्रेफर किया जाता है कि नहीं? नहीं किया जाता, सिंपल। बट आप इंपॉर्टेंस समझे स्टैंडर्ड डेविएशन की। बिजनेस में ये डेली यूज होता है, जो आपने अभी मैनुअली बताया बिना कोई कैलकुलेशन करे। जब बिजनेस के पास करोड़ एंड करोड़ ऑफ लाइन आइटम्स होती हैं, राइट। आप मेरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? अच्छा, 1 मिनट ऑफ करिए। आप समझ रहे हैं? इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है तो कम से कम इतने तो बिल भी जनरेट हो रहे हैं। जब इतने बिल जनरेट हो रहे हैं तो आप एक्सेल में तो डाउनलोड ही नहीं कर सकते उसको, 10 लाख की तो लिमिट है, और 10 लाख तक तो आप यूज भी नहीं कर सकते, वो हैंग हो जाएगा। आप कुछ भी उसमें फिल्टर भी लगाओगे तो भी नहीं चलेगा, राइट। तो जब इतना डेटा है वो भी 1 महीने का, तो आपको पाइथन ये सब चीज़ों पे डिपेंडेंट होना ही पड़ता है, या एसक्यूएल में भी कोई मेरे टीम मेंबर्स चला लेते हैं। तो वहाँ पर अगर आपने ये देखना है कि मेरी कौन सी साइट, सपोज नाउ एवरी ई कॉमर्स कंपनी हैज़ हंड्रेड्स ऑफ साइट्स, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी साइट कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, तो कंसिस्टेंसी मीन्स लो स्टैंडर्ड डेविएशन, हाई स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरी गुड, आप एक्सपर्ट बन गए बस। आप गेटिंग माय पॉइंट? स्टैंडर्ड डेविएशन इज सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी मीन्स लो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कल को अगर आपका बच्चा सपोज क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उसको ये, अभी तक बोलते थे बेटा यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, अब आप ये बोल सकते हो बेटा तेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए। उसको समझ आए ना आए, आपको मजा आ जाएगा।
कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने, बच्चे पे भी लगा दिया नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तो भूल जाओगे, ये भी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मैं तो भूल ही गया कि हमारे सीए में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आप लोग ने बड़ा एंजॉय किया, ये सब्जेक्ट भी याद नहीं है, राइट। तो क्योंकि मैं वो करता नहीं हूँ काम, राइट, मेरा काम अभी खाली ऑडिट्स और डेटा पे है। सो ये क्लियर हो गया। ये क्यों मैंने समझाया था, मैं तो क्वेश्चन नंबर 3 था शायद ना, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे थे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हम इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि सर का क्वेश्चन था कि डेटा आया है अब क्या करें। तो वेरी फर्स्ट थिंग, सपोज दैट डेटा रिलेट्स टू परफॉर्मेंस ऑफ योर टीम, परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स टीम, परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट मीडिया, टीवी वर्सेज इंस्टाग्राम। अगर आपके पास आप एडवर्टाइजमेंट स्पेंड्स का ऑडिट कर रहे हैं अपनी कंपनी का, अब वहां पर लगा सकते हैं कि टीवी में ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है या इंस्टाग्राम पे आ रही है। ऑब्वियसली टीवी में ज़्यादा आएगी, ये तो सोशल मीडिया तो आजकल मस्त एकदम रिटर्न ज़बरदस्त है इनका एज फार एज एडवर्टाइजिंग इज कंसर्न, राइट। वो तो मेरा एक्सपीरियंस है, आप अपना टेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो दीज 3 क्वेश्चंस आंसर्ड। एनी अदर क्वेश्चन बिफोर आई देन मूव टू माई प्रेजेंटेशन? हाँ, नहीं, आप जितने मर्जी पूछिए, मैं तो 11:30 बजे तक आपके साथ ही हूँ। नहीं, उसके अंदर नहीं, आप वहां से डेटा लेके ये सब करेंगे ना, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेटा सोर्स विल बी वट एवर सिस्टम यू मे हैव टैली, यू मे हैव ओरेकल, यू मे हैव एसएपी, यू मे हैव पीपलसॉफ्ट, वट एवर, यू मे हैव खाता बुक। कौन सी है आजकल चल रही है? रेड खाता, नो, तो क्या है नाम, खाता बुक ही है ना, हाँ, है ना। तो कोई कहीं डेटा कहीं से भी ले सकते हैं। डेटा जब आपने ले लिया, कुछ भी कर सकते हैं आप, TXT में डाउनलोड कर लो, आप CSV में कर लो, उसमें तो कोई लिमिट की टेंशन नहीं है। TXT में करते हैं तो और बढ़िया है, क्योंकि उसकी फाइल साइज बहुत छोटी होती है, KBs में ही बनती है। आपने अरबों डेटा डाउनलोड कर लिया, वो भी MB में जाएगी, तो उसमें टेंशन नहीं है। और ये पाइथन वगैरह तो ऐसे मतलब आंख बंद करके अपलोड कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। और आजकल ये जितने भी डेटा एनालिसिस के टूल्स हैं, ये तो डेटा फोटो से भी उठा लेते हैं, यू मस्ट हैव सीन, राइट। PDF तो बहुत पुरानी बात हो गई, अपना ACL आइडिया, ये तो PDF से कब से उठा रहे हैं, बेबी 15 साल 20 साल। तो डेटा सोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, बट डेटा आ गया, अब करना क्या है, दैट इज मैनी टाइम्स अ चैलेंज। की नहीं करना, क्या क्या कर सकते हैं, what all are the possibilities, that possibilities you get to learn when you go deeper into what all you can do with data, right। ठीक है जी, ये हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, चलिए, बीच में कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज कीप आस्किंग, आगे चलते हैं। डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने कहा, सिंपल मैं बताता हूं। अभी देयर आर मेनी कंपनीज विच आर रनिंग ऑन SAP, या SAP से तो बड़ा ERP आज की डेट में कोई है नहीं, यस और नो? आज की डेट में SAP से बड़ा ERP कोई नहीं है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एनी कंपनी विच इज रनिंग ऑन SAP इज अ डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज इतना डेटा उनके पास, एवरीथिंग इज इन सिस्टम एंड एवरीथिंग इज इन वन सिस्टम ओनली, बिकॉज अलग अलग मॉड्यूल्स है ना, एंड दे ऑल आर पार्ट ऑफ दिस वन इकोसिस्टम। तो कैन आई से अ कंपनी रनिंग ऑन SAP इज अ डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन? यस। हाउ मेनी? नो। तो इतना डेटा उनके पास, व्हाई नॉट? एनालिसिस, it's not used for decision making, it's raw data, okay, unprocessed, okay जी, what else? और क्यों? पीछे से भी बहुत एकदम मस्त इको में आई थी आवाज कि नहीं। हाँ जी, ये सर, नहीं, थोड़ा रिपीट करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट है जी, कि ऐसा नहीं हो कि डेटा साइलो में पड़ा हुआ है, परचेज वाले का डेटा एक टेबल में पड़ा है, सेल्स वाले का दूसरे में, एडवर्टाइजिंग स्पेंड कहाँ कर रहे हो तीसरे में, कौन परचेज कर रहा है चौथे में। यू आर राइट। तो लिंकेजेस बनानी बड़ी जरूरी है। क्या वो कंपनी लिंकेज बना रही है नहीं बना रही, वो डिसाइड करेगा whether that company is data driven or not. Absolutely. What else? Many companies are using CRM. CRM, yeah, CRM is a module, no? Yeah, correct. But see, exactly, मैं ये कहने वाला था। कौन सर बोले? सर, आप झेले हुए हो ये, है ना? पर हाँ, yes or no सर, आपने एक्सपीरियंस किया होगा प्रॉब्लम। यू आर राइट। द रियल प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, लेट मी शेयर विद यू, जो सर ने बोला उसी को मैं इलेबोरेट कर रहा हूं।
टूल में कोई खराबी नहीं होती है. A company can successfully run on Tally also, and a company which is running on SAP, it may still struggle in getting data. It is not about tool, it is not about ERP, it is about the quality of implementation. ये मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ हर जगह बोलता हूँ, और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, बिकॉज ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और इतनी कंपनीज का एक्सपीरियंस है कि इंक्लूडिंग यूनिलीवर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट. यूनिलीवर ने कुछ साल पहले 10-15 साल पहले SAP GRC लगाया था. SAP GRC even today is considered to be one of the very reliable, dependable module. आप उनसे पूछिए, मेरे से मत पूछिए, उनसे पूछिए जब उनका इंप्लीमेंट हुआ तो कितना यूजफुल हुआ. और ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी छोटी फर्म से इंप्लीमेंट करवाया था. You have some context, you're smiling, you could connect with that. हाँ, तो you agree कि quality of implementation is very important. जो टीम उस पे काम कर रही है, वो टीम ने कितना अच्छे से उस बिजनेस को समझा है, that is important. Second important, implementation खाली टीम पे भी डिपेंड नहीं करता है. इंप्लीमेंटेशन टीम यानी जो वेंडर की टीम आई है, वेदर इट इज एक्सेंचर, वेदर इट इज IBM, वेदर इट इज इवन SAP. एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंप्लीमेंटेशन में, जिसके कारण इंप्लीमेंटेशन फेल होते हैं. हाँ जी सर, आपको कुछ है एक्सपीरियंस इस पार्ट का भी कि और क्या हो सकता है सर? डिजाइन ठीक है, या यू आर राइट. हाँ जी, एक मिनट, क्या बोला आपने? व्हील बोले तो विल ऑफ द मैनेजमेंट. एब्सोल्युटली, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा. सही कह रहे हो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मैनेजमेंट. क्योंकि बिजनेस किसका है? मैनेजमेंट का. बिजनेस रिस्क को अच्छे से कौन समझता है? कंसल्टेंट जो बेचारा अभी 2 महीने आके आपका प्रोसेस समझने लगा वो, या आपकी खुद की टीम जो 10 सालों से आपकी कंपनी के लिए काम कर रही है? आपको ये पॉइंट शायद लग रहा होगा बड़ा बेसिक है, जस्ट लाइक बार चार्ट एंड स्कैटर प्लॉट, बट the difference between successful implementation of any tool including your data science, आप आज ही लिख लो, the difference lies only in the involvement of the company's management. एग्जाम्पल बताता हूं. मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जो ये प्रोजेक्ट डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है, ये करीबन 2.25 साल पहले स्टार्ट किया, और आज हम ऐसी स्टेज पे आए हैं जहां पर मेरी टीम को बेनिफिट अब दिखने लगा. पहले तो मेरे को चैलेंज करते थे, सर क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लाइफ हमारी मस्त चल रही थी, डिस्टर्ब कर रहे हो हमारे को. अब उनको समझ आने लगा है जब मैंने उनको पूरा डायरेक्शन देके करवाया. एंड देन दे फाउंड दैट सम अदर डिपार्टमेंट्स, आफ्टर सीइंग आवर सक्सेस, ऑडिट डिपार्टमेंट सक्सेस इन डेटा एनालिसिस, उन्होंने बड़े सारे DA एक्सपर्ट्स, डेटा साइंटिस्ट हायर कर लिए. मेरी टीम को ना कॉम्प्लेक्स आ गया, सर हम तो पीछे रह जाएंगे, हमें भी ना स्पीड में और एनालिसिस बनाने चाहिए. मैंने कहा फर्स्टली गो एंड चेक कि उस डिपार्टमेंट में से कौन कौन आदमी इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट में, फिर उसके बाद बात करेंगे. मेरी टीम ने पता किया और आंसर ये मिला कि अरे हमने फलाना बिग 4 हायर की है जो हमारी कंपनी के साथ पिछले 8 से 9 साल से काम कर रही है. उनसे ज्यादा हमारी कंपनी के प्रोसेस किसको पता है, तो हमारी टीम से किसी को लगने की क्या जरूरत है. उनको हमने काम दे दिया, उनको हमने X अमाउंट भी दे दिया, वो हमारा पूरा का पूरा DA ऑटोमेट कर देंगे. जब मेरी टीम ने बोला, मेरी टीम घबराई आई, सर मतलब ये तो बेस्ट टीम उन्होंने लगा दी. मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, ये पूरा का पूरा पैसा वेस्ट होगा. आज की डेट में मेरी बात पे रिलाय करने के लिए कोई रेडी नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने एक बिग 4 को प्रोजेक्ट दिया है टू ऑटोमेट डेटा एनालिसिस, और मैं कह रहा हूं कि इसका बेनिफिट नहीं आएगा. इट जस्ट अ मैटर ऑफ 6 मोर मंथ्स. प्रूव हो जाएगा. क्यों प्रूव होगा? बिकॉज आपको क्या चाहिए एक्चुअली, आपकी प्रॉब्लम आप ही को पता है. कंसल्टेंट अपना पिछला एक्सपीरियंस लगाएगा ना, उसका पिछला एक्सपीरियंस किसी FMCG कंपनी का हो सकता है, किसी स्टील कंपनी का हो सकता है, किसी ऑयल एंड गैस कंपनी का हो सकता है, मुझे नहीं पता. वो अपना पिछला एक्सपीरियंस लगाएगा और अपना दिमाग लगा के टेक्निकल ऑटोमेशन कर लेगा. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, टेक्निकल ऑटोमेशन. हमारे को तो बिजनेस ऑटोमेशन चाहिए ना. टेक्नोलॉजी इज ओनली एन एनेबलर, प्लीज अंडरस्टैंड. आप सक्सेसफुल डेटा एनालिसिस में तब नहीं हो पाएंगे जब आपसे कोई पूछे कि हाँ जी क्या किया. मैंने पाइथन लगा दिया. बट लगाया क्यों?
नहीं, क्योंकि आजकल पाइथन चल रहा है इसलिए लगाया। पाइथन हो या आर हो या आप एसक्यूएल यूज कर लो या कुछ और यूज कर लो, सबसे पहले तो आपको ये पता बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी आपने, करेक्ट ना? फिर आप बोल सकते उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने के लिए पाइथन यूज किया है, सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आर यूज किया। अगर फिर उस पर कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाई यू डिसाइडेड पाइथन, तो आप टेक्निकल डिटेल में जाओ। बट व्हाई यू ऑटोमेट समथिंग इज नॉट बिकॉज पूरी दुनिया कर रही है। यू ऑटोमेट समथिंग और यू एनालाइज समथिंग बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, और आपके बिजनेस की प्रॉब्लम आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। सो अनलेस वेदर इट इज अबाउट एनी डेटा साइंस प्रोजेक्ट और इट इज अबाउट इंप्लीमेंटिंग एनी टूल, unless you have your own strong team which is doing the project management, yeah, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। आप आज लिख लीजिए, अगर कोई ऐसा सक्सेसफुल हो गया, वो एक अलग केस स्टडी बनेगी, मेरे को जरूर बताना, मैं जाके स्टडी करूंगा कि ऐसे कैसे सक्सेसफुल हो गया, हो नहीं सकता। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। तो डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता लग गया कि जस्ट बिकॉज अगर आपके पास ऐसे डेटा अवेलेबल है, अपने आप डेटा ड्रिवन नहीं होते। जैसे सर आपने बोला कि आपके पास जो डेटा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, हाउ वेल यू आर यूजिंग। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया, उसमें हमने क्या बोला कि सेल्स का डेटा, स्विगी का जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था, सेल्स का डेटा प्लस डेमोग्राफिक कि क्या एज ग्रुप है। अब ये हमारे कस्टमर की एज ग्रुप का डेटा हमारे मास्टर से मिलेगा, कस्टमर मास्टर से, राइट। सेल्स का डेटा सेल्स मॉड्यूल में होगा, मास्टर का डेटा मास्टर जो हमारा क्या होता है मॉड्यूल का नाम, जो भी अलग अलग सिस्टम में अलग अलग मॉड्यूल है, वहां से हमारे को मिलेगा। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो हम सेल कर रहे हैं उस सेल के लिए हमारे को ऑफर्स एंड कूपन्स देने चाहिए नहीं देने चाहिए। जब भी आप स्विगी या जोमेटो खोलते हो तो उसमें जो आता है ना अप्लाई कूपन, तो उसमें बड़े सारे ऑप्शंस आते हैं, आप देख लेना आपको जो ऑप्शन आते हैं और आपके जो फ्रेंड को ऑप्शन आते हैं, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई वो डिफरेंट होंगे, अनलेस यू बोथ फॉल इनटू द सेम डेमोग्राफिक बकेट। जैसे एज ग्रुप भी आपका सेम है, सैलरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपका बाइंग पैटर्न भी सिमिलर है और आपके पास जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो भी सिमिलर है। ये 4-5 चीजों का कॉम्बिनेशन रहता है। सो दैट मेक्स द कंपनीज डेटा ड्रिवन। चलिए जो और क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने देख लिया। हाँ, स्मैक, एनीबडी नो स्मैक? नहीं। जो आज की डेट में जो भी न्यू एज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो न्यू एज ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन दे वांट टू बी ड्रिवन बेस्ड ऑन डेटा, और डेटा पे क्यों ड्रिवन होना चाहते हैं? क्योंकि दे वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एनी डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट ट्राइंग टू डू व्हाट? सॉल्व कस्टमर्स प्रॉब्लम, एंड टू सॉल्व दैट कस्टमर प्रॉब्लम क्विकली and on scale, the new age organizations are using SMAC. SMAC is basically combination of 4 things. First is social. Social means social media. They are reaching you. Example बताता हूँ, I don't know आपने एक्सपीरियंस किया नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे मुझे आजकल इतनी ऐड आती है ट्राउजर्स के ब्रांड्स की, नए नए ट्राउजर जिनका मैंने नाम ही नहीं सुना। जैसे एक नया ब्रांड आया हरफुन, पता नहीं इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, HARFUN, ट्राउजर्स एंड शर्ट्स। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी ऐड आने लगी है। हो सकता है वो स्टार्टअप भी कल ही खुला है, लेकिन द वे दे हैव टारगेटेड कि राजीव इस तरीके की चीज खरीदता है, शर्ट्स खरीदता है, इस तरह के मटेरियल के फैब्रिक के ट्राउजर खरीदता है, तो मुझे ऐड आई। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द एड ऑफ दैट ब्रांड HARFUN? 1 2, बट आर यू सीइंग नॉट एवरीबॉडी गॉट इट, बट जितने भी एटलीस्ट मेंस यहां पर बैठे हैं ट्राउजर्स तो पहनते हैं, सारे पजामा तो पहनते नहीं, लेकिन आप सबको ऐड नहीं आई। कस्टमाइजेशन, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। टारगेटेड से फायदा क्या है? उसका खर्चा बचा, उसके एनालिसिस को के बेसिस पे उसको लगा कि आप खरीदने नहीं वाले हो उसकी ट्राउजर, तो उसने आपको ऐड नहीं दिखाई, क्योंकि ऐड दिखाने का खर्चा होता है। इट वेरीज टाइम ऑफ द डे, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो लाइक्स के बेसिस पे है, लीड के बेसिस पे है कि सेल के बेसिस पे है, बहुत क्राइटेरियाज है। तो सबसे पहला है सोशल, यानी न्यू एज ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग सोशल। सोशल मीन सोशल मीडिया से आपको रीच कर रहे हैं। एमएस मोबाइल, उनको पता है सेल अगर बढ़ानी है तो अपना माल मोबाइल पे अवेलेबल होना चाहिए। क्यों मोबाइल पे? लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है?
नॉट नेट दैट मच एक्सेसिबल। सपोज अगर मैंने अभी आपको कोई बुक रिकमेंड करी, अगर Amazon और फ्लिपकार्ट खाली लैपटॉप पे अवेलेबल होते तो सेल कम हो जाती, लेकिन मैंने जैसी अभी बुक रिकमेंड करी, आधे में आप में से आधे Amazon खोल लेंगे या फ्लिपकार्ट खोल लेंगे और बुक ऑर्डर कर देंगे, करेक्ट ना? तो सेल बढ़ गई। तो मोबाइल, उससे फायदा क्या है, आप चाहे बस में बैठे हो, टैक्सी में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, फ्लाइट छोड़ दो, कहीं भी बैठे हो, इमीडिएटली ऑर्डर किया जा सकता है, हेंस सेल बढ़ जाएगी। दैट्स वाई एम मोबाइल। ए क्या है? एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्यों करना है? फॉर द रीजंस वी आर डिस्कसिंग फॉर लास्ट 1 आवर। एनालिसिस करोगे तो या तो रेवेन्यू बढ़ेगा या खर्चा कम होगा, दोनों में से एक तरफ फोकस होता है हमारा एनालिसिस। तीसरा कुछ नहीं कि एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्फ्रेंस, हाँ मजा आ रहा है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम में सबने बोला एनालिसिस करेंगे तो मैंने भी कर दिया, उसके लिए नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, और बिजनेस में 2 ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या तो टॉप लाइन बढ़ाओ या खर्चे कम करो, एनालिसिस। और लास्ट है क्लाउड। क्लाउड क्यों? क्लाउड क्यों चाहिए? डेटा स्टोरेज। बट यहां तो गर्मी इतनी है, क्लाउड तो ऊपर है नहीं, यहां पर आपने क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले भी लिया तो क्या फायदा है? क्लाउड तो अभी बैंगलोर पे है, आप डेटा कैसे एक्सेस करोगे? हाँ जी, आप नहीं बैंगलोर से डेटा आएगा, फिर तो क्लाउड तो उधर है, इजी एक्सेस। एब्सोल्युटली, रियल टाइम अपडेट, कॉस्ट एफिशिएंट, इजी एक्सेस एंड अनलिमिटेड स्पेस। आपको स्पेस ज्यादा चाहिए, आपको कोई सर्वर खरीदना ही नहीं है, आप बस उस अपने जो भी वेंडर है उसे कांटेक्ट करो, उसको बोलो मेरा स्पेस बढ़ा दे, उसको तो अपनी फीस से ही मतलब है। आप और उसको फोन करके या जो भी है ईमेल डाल के फ्यू मिनट्स में आपकी स्पेस बढ़ जाएगी। एंड स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, क्लाउड इज द फ्यूचर। अच्छा, अगर आपने खुद का सर्वर लिया तो आपको एक छोटा सा आईटी मैनेजर भी चाहिए, छोटा बड़ा डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी बड़ी कंपनी है, क्योंकि सर्वर लिया तो उसका मैनेज भी तो करना पड़ेगा, उसमें पैचेस प्रॉपर लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी प्रॉपर है नहीं है, उसका एंटीवायरस है नहीं है, इतने चैलेंजेस। कुछ नहीं चाहिए, क्लाउड, सब कुछ क्लाउड में। और न्यू एज ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू बी एजाइल। एजाइल मींस जैसे कस्टमर की प्रॉब्लम चेंज हुई हम भी चेंज हो जाएं। कल को सपोज मान लेते हैं ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई कि लोगों ने ट्राउजर पहननी ही बंद कर दी और कहा कि अब तो हम शॉर्ट्स ही पहनेंगे पूरी दुनिया में। लेकिन अगर किसी कंपनी ने ऐसी मशीन खरीद ली जो मशीन से बनती ट्राउजर हैं, तो उसका तो कैपेक्स वेस्ट हो गया। तो दे वांट टू बी एजाइल। जैसे ओला उबर अपनी खुद की टैक्सी है ही नहीं, कल को कोविड आया तो नुकसान उनका हुआ ही नहीं ज़्यादा, मतलब ठीक है रेवेन्यू लॉस हुआ बट उनका नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। किसका? वो जिसकी गाड़ी थी, जिसका कैपेक्स था। तो न्यू एज ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू बी एजाइल। एजाइल मींस मेरा खुद का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कम से कम होना चाहिए, ताकि कस्टमर की प्रॉब्लम खत्म हुई और दूसरी प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं, आई क्विकली शिफ्ट टू अनदर बिजनेस। एसेट लाइट, या एब्सोल्युटली। सो दिस इज द न्यू मॉडल स्मैक। इसमें स्मैक आईटी भी मतलब वेरिएंट हैं कुछ, बट स्मैक इज द बेयर मिनिमम विच इज बीइंग यूज्ड। आनंद जहांगीर ने कल ब्लॉकचेन वगैरह कवर किया होगा ना? ठीक है, very good. So these are few examples of the companies which are investing heavily either in metaverse or in blockchain. जैसे मैकडोनल्ड्स, अब तो उसका स्टोर बन भी गया होगा। मैकडोनल्ड ने जमीन खरीदी है, अहमदाबाद में नहीं, सूरत में भी नहीं, मेटावर्स में, और वो कह रहे हैं कि हम वहां पर स्टोर बनाएंगे। अब सोचो मेटावर्स, मतलब आप चांद पे खरीद लो फिर भी समझ आता है, बिकॉज चांद है। यूएस में कंपनी बेच भी रही थी जमीन, पता है आपको? मैं मजाक नहीं कर रहा, आप चांद पे जमीन खरीद सकते हो, अभी मिल जाएगी, आप बस पैसे दो, गूगल कर लो परचेज लैंड ऑन मून। बट मून है, मेटावर्स तो है ही नहीं, लोग उस पर जमीन खरीदे हैं लोग। अच्छा, ऐसा नहीं कि मेरे जैसे लोग जिनको है कि चलो गैम्बलिंग कर लें, पीडब्ल्यूसी सिंगापुर या हांगकांग ने भी जमीन खरीदी है मेटावर्स। यू नो मेटावर्स राइट? कल डिस्कस किया होगा कि नहीं? अच्छा, यू नो मेटावर्स? नो भी आ रहा है, हाउ मेनी नो? तभी मैं आंसर दूंगा। हैं, नो हैं, ओके। हाउ मेनी यस? सर, व्हाट इज मेटावर्स? It's a virtual platform created where people can interact virtually with each other. हाँ, And some devices such as Oculus Rift and absolutely. Very beautiful example of metaverse is that movie Avatar. Avatar में जो दिखाया है
कि वो इंसान खुद तो किसी ऐसे बेड पे लेट जाता है, करेक्ट ना, ऐसे जिसमें ऐसे शीशे का ग्लास है, और उसका अवतार is in another world. That exactly is what is happening in metaverse. Even Flipkart is launching metaverse. हमारा भी metaverse अभी आपको पता है, हमारा साल में एक सबसे बड़े सेल लगाते हैं हम, जिसको बोलते हैं बिग बिलियन डे, और दिवाली के आसपास लगती है। उससे पहले हम अपना मेटावर्स लॉन्च करेंगे, या एंड वी आर गोइंग टू बी फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी टू हैव आवर ओन मेटावर्स। तो उसमें होगा क्या, हम सैमसंग, एप्पल, इन सबके स्टोर हमारी प्लेटफॉर्म के अंदर खोल देंगे। यानी आपका अवतार हमारे ऐप के थ्रू एप्पल स्टोर के अंदर जाएगा, मोबाइल्स को टच एंड फील करेगा कि ये मेरे हाथ में प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। कई बार होता है ना, आप देखना चाहते हो कि छोटा तो नहीं है कहीं ये मोबाइल, कि मैं वो प्रो लूँ कि नॉर्मल लूँ, तो कैसे देखते हो आप? ये देख के कि भाई मेरे हाथ में अच्छा लगेगा कि छोटा लगेगा। तो यू विल बी एबल टू डू दैट, यू विल बी एबल टू इंटरैक्ट विद द एग्जीक्यूटिव देयर। सो मेटावर्स, दैट्स स्मॉल एग्जांपल। ओके, सो मेटावर्स बेसिकली क्या है? 3D वर्जन ऑफ योर Zoom. Zoom is what? 2D. Why 2D? Length and breadth. 3D means height also, मतलब थर्ड डायमेंशन also gets added. तो उसमें होगा क्या, मेटावर्स में आप चाहे यहां पर बैठे हैं, अभी सपोज आज शाम को सेशन खत्म हो गया और आपको एक मीटिंग अटेंड करनी है अपने क्लाइंट के साथ जो दिल्ली में बैठा है। एक ऑप्शन तो इजी ऑप्शन है ये जूम पे आपकी फोटो, मूविंग फोटो देख पाएगा, विच इज 2D। लेकिन आप सारे ये फील करना चाहते हो कि आप सारे इकट्ठे बैठे हो, आपके साथ आपका क्लाइंट बैठा है, आपके इधर आपका टीम बैठी है, आप ये फील करना चाहते हो। सो दैट इज वेयर यू गो इनटू मेटावर्स। ऑब्वियसली फॉर दैट यू यूज ऑल AR VR वाले जो हेडसेट हेडसेट्स हैं वो यूज करते हैं। अच्छा, अब इसमें मैकडोनल्ड क्या करने वाला है? मैकडोनल्ड कह रहा है जब आप वो AR VR लगा के मीटिंग करोगे, पूरा दिन काम करोगे, तो भूख भी तो लगेगी, लंच भी तो करोगे, शाम को चाय भी पीनी है। तो लंच करोगे, तो जब फिजिकल वर्ल्ड में लंच करना होता है तो वहां पर आपको स्टोर दिखता है मैकडोनल्ड का। तो वर्चुअल वर्ल्ड में बैठे हो तो थोड़ा ना हेडसेट उतार के अपना स्विगी ऐप खोलोगे और उसमें से मैकडोनल्ड का बर्गर ऑर्डर करोगे। उन्होंने कहा नहीं, टेंशन ही नहीं, आप जहां बैठे हो वहीं पे मैं अपना स्टोर खोल देता हूं। तो आप वर्चुअल वर्ल्ड में अपने ऑफिस की बिल्डिंग से नीचे उतरेंगे, साथ वाली बिल्डिंग में जाएंगे जहां पर मैकडोनल्ड का स्टोर खुला हुआ है। वर्चुअली जा रहे हैं आप, एक्चुअली तो हम यहां पर बैठे हैं लेकिन आपके हेडसेट में। वहां पर जाके आप बर्गर ऑर्डर कर देंगे, बट आपने तो वर्चुअली बर्गर ऑर्डर किया ना, आपका पेट कैसे भरेगा? हाँ जी, पेट तो नहीं भरेगा। तो यहां पर मैकडोनल्ड की स्मार्टनेस है, उसने कहा कि मैं ऑर्डर आपका लूंगा वर्चुअल वर्ल्ड में, उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा अपने असली सर्वर से, और जब आप ऑर्डर दोगे तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि सर आप बैठे कहां पे हो? आप ऑर्डर तो दे रहे हो मेरे दिल्ली के मेटावर्स में, सपोज कनॉट प्लेस, लेकिन आप रियल में कहां बैठे हो? तो जब आप ऑर्डर दे रहे होगे, आप बोलोगे कि मैं फेयरफील्ड होटल अहमदाबाद में बैठा हूं फर्स्ट फ्लोर पे। तो ऑर्डर उसका मेटावर्स से निकल के कहां जाएगा? उसके रियल सर्वर में, और वो ऑर्डर कहां पुश हो जाएगा? अहमदाबाद के आपके नियरेस्ट जो भी मैकडोनल्ड स्टोर है वहां पे वो बंदा अपनी बाइक पे पहुंच निकल के ये बाहर खड़ा हो जाएगा और आवाज मारेगा, सर आपका बर्गर आ गया। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। PwC हांगकांग, मेरे ख्याल से आप गूगल कर लेना, PwC हांगकांग ने भी जमीन खरीदी है मेटावर्स में। वो कह रहे हैं कि हम अपना ऑफिस बनाएंगे, क्योंकि जब आप बिजनेस मीटिंग करोगे तो बिजनेस में प्रॉब्लम्स ही तो आएंगी। प्रॉब्लम आएंगी तो रिस्क कंसल्टेंट होने चाहिए। तो रिस्क कंसल्टेंट से मिलने के लिए आप AR VR क्यों उतारोगे? आप जब वर्चुअल वर्ल्ड में हो, वहीं से उसी वर्ल्ड में आके साथ वाली बिल्डिंग में हम बैठे होंगे, आप हमारे से मिल लो वहां पर आके, हमारा ऑफिस है वहां पर रेडी। सो दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। या तो पीपल आर बाइंग लैंड। एक बारी तो मैंने भी सोचा, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सोचा तो 5 लाख रुपए की जमीन मिल रही थी, जब सेकंड टाइम सोचा तो 10 लाख हो गई, तो मैं रुक ही गया। मैंने कहा भी रुक जाओ, पता लगा कि जैसे ही मैंने 10 लाख की खरीदी 1 लाख हो गया, बिकॉज रियल में तो कुछ है नहीं। या पता लगा प्लेटफॉर्म भी बंद होकर भाग गया। आज की डेट में 2 बड़े प्लेटफॉर्म है, चांसेस आर लेस कि भाग जाएंगे। एक सैंडबॉक्स है, दूसरा भूल गया मैं क्या है, 2 ही, हाँ जी 2 है ना, एक सैंडबॉक्स है, 2 ही फेमस हैं, अभी नाम याद आ गया, वो इजी है, वो तो गूगल कर लेंगे आप। सो हाँ जी सर, कूल वे टू मेक पीपल फूल, दोनों येस एंड नो भी है। फॉर एग्जाम्पल
बिटकॉइन वगैरह कल डिस्कस हुआ है आनंद के सेशन में? हाँ हाँ, बिटकॉइन इज मतलब रियल वर्चुअल है, बट देयर आर मैनी कॉइन्स। जब मैं लास्ट टाइम इन्वेस्ट करता था, मैंने मतलब कुछ टाइम पहले तक मैं भी इन्वेस्ट करता था बिटकॉइंस में, नॉट बिटकॉइन, आई मीन दिस क्रिप्टोज में, तो उस टाइम पे 21,000 तरीके के क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल थे। फॉर्चुनेटली मैंने टॉप 100 में ही इन्वेस्ट किया था, उसमें जो टॉप 10 था उस टाइम पे, नाम भूल गया मैं उसका, उसमें मेरी काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट थी, वो खत्म हो गया एक ही दिन में। कौन सा था? टेरा लूना, वो एक ही दिन में अचानक खत्म हो गया, नंबर 10। अभी ऐसे 21,000 थे जब मैं लास्ट टाइम इन्वेस्ट करता, उसके बाद तो मैंने बंद ही कर दिया। मतलब जो है सो है, वो ऐप्स भी आईफोन में होता है ना, ऐप्स ऑटो अनइंस्टॉल हो जाती हैं अगर आप कुछ दिनों तक यूज़ ना करो। तो पता नहीं उसमें मेरा कितना पैसा बचा है नहीं बचा है, बट द पॉइंट इज बिटकॉइन कहीं नहीं जाएगा, उसका फंडामेंटल रीज़न है। बाकी जो बने हैं टेक्निकली उनमें प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, तो अगर उनके फाउंडर्स की इंटेंशन सही है और सही रही आज भी और कल भी, तो आपका पैसा है, अदरवाइज वो निकल जाएंगे कहीं ना कहीं, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें बहुत लिमिटेड करना, 2-3-5% से ऊपर मत करना ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो, जस्ट टू टेक सम मजा। उससे ऊपर जाओगे तो आपका मजा हो जाएगा। ठीक है जी। सो दिस क्विक वीडियो इज ऑन डीप फेक कवर हुआ कल आपका किसी सेशन में? हो गया ये वीडियो देखा, ऐसा कुछ नहीं? अच्छा ओके, चलिए इसको 1 मिनट का वीडियो देखते हैं इसको। I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? जो ये वीडियो था, दिस इज नॉट द जेंटलमैन इज व्हाट्स हिज नेम, नॉर्मन फ्रीमैन। इनकी बहुत आपने मूवीज देखी होंगी, बट दिस वीडियो इज नॉट रियल। ऐसे ही आपने वो हमारा कौन है, बहुत सारे यूएस हॉलीवुड के हीरोज और पॉलिटिशियंस के ऐसे वीडियो आ चुके हैं। दीज आर मेड विद डीप फेक टूल्स एंड द चैलेंज इज, यू नो हाउ एक्सपेंसिव दे आर, these deep fake tools? Any idea how many crores you have to pay to get license of these? Sorry? Correct. नहीं, they can afford, but in general, जैसे हमें पता आइडिया का लाइसेंस कितने का आता है, ACL का लाइसेंस कितने का आता है, पाइथन फ्री है, राइट, R फ्री है, उसी तरह से डीप फेक कितने का है, सॉफ्ट लाइसेंस फ्री। Deep fake tools are available free of cost because you know why? They are open source, and that is the problem. कोई भी Udemy से कोर्स कर लेता है, नॉट डेटा साइंस का, डीप फेक का। Udemy हो गया, ऐसे बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, and then they misuse. Yeah, what comes to your knowledge is only about नॉर्मन फ्रीमन हो गया या अपना ट्रम्प हो गया, but there are many people who are misusing this technology. अच्छा, डीप फेक बनता कैसे है? ये तो हम पहले भी होता था, नीचे बॉडी राजीव गुप्ता की, मुंडी किसी और की, नहीं, ये तो पहले भी कट एंड पेस्ट तो पहले भी होता था। तो डीप फेक कैसे डिफरेंट है? एनी आइडिया? वो कैसे होता है, कैसे करते हैं? करेक्ट, यू आर राइट। तो क्या होता है, ये उसी चीज का या उसी लिविंग बीइंग का हो सकता है जिसकी बहुत सारी फोटोज अवेलेबल है या बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है, और वो अलग अलग साइट्स होने चाहिए, ऐसे सारे पोजेस। क्यों? क्योंकि जब आप बोलते हो तब आपका हेड भी थोड़ा हिलता है, तो वो सारे अलग अलग एंगल से फोटो या वीडियो होने चाहिए। जितने ज्यादा उतनी ज्यादा क्लियर, उतनी ज्यादा डिफिकल्ट से डिटेक्ट होने वाली डीप फेक बनेगी। और होता क्या है, असली में वो जो वीडियो बना रहा है वो कोई और बना रहा है, हो सकता है मैं बना रहा हूं, तो बोल मैं रहा हूं, और मेरे एक्चुअल वीडियो को
उस आदमी के, सपोज नॉर्मन फ्रीमैन पे अगर इम्पोज करना है, इसके हम इंटरनेट से जितने भी वीडियोस है, जितने भी फोटोज हम डाउनलोड कर सकते हैं कर लेंगे, इस टूल में डालेंगे और वो मिक्स करके, बोल असली में मैं रहूंगा, मिक्स करके ऐसा वीडियो बनाएगा। एंड ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन कितने अच्छे फोटोज या वीडियोस असली में नॉर्मन के हमने डाले थे, उसके बेसिस पे ये डीप फेक वीडियो बन जाता है। एंड दिस इज द एक्चुअल रिकॉर्डिंग ऑफ हाउ दिस वाज मेड। I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? ठीक है जी, सो द पर्सन ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ द वीडियो, ही इज द वन जिसका एक्चुअल वीडियो बनाया गया था, एंड इट वाज सुपर इम्पोज्ड विद दिस डीप फेक टूल्स टू मेक द अदर वीडियो. It is scary, as I said, because it is open source and many people have already started misusing it, even in the corporate world. उसके भी कुछ एक एग्जाम्पल्स रियल केस, लाइव रियल केसेस हैं. अभी एक हैदराबाद में हुआ था कुछ टाइम पहले हुआ, एक अभी जर्मनी में हुआ है. वहाँ पर डीप फेक वीडियो नहीं, डीप फेक ऑडियो बनाया गया, या और ऑडियो भी कैसा लाइव. सो समवन called the CEO of a company in Germany pretending that he is the group CEO, कि ग्रुप CEO फोन कर रहा है जर्मनी के CEO को and asked him कि ये फलाना फलाना जो वेंडर है, and you can find it on Google, ये फलाना फलाना वेंडर, इसको जो पेमेंट हमारी ड्यू है वो क्विकली कर दो फॉर XYZ रीजंस. अभी जो CEO है उसने ध्यान नहीं दिया कि किस नंबर से फोन आया, कहाँ से आया, बट आवाज, बात करने का तरीका एग्जैक्टली ऑफ हिज ग्रुप CEO. और उस जो जर्मनी का जो CEO है उसने अपनी टीम को, जो अकाउंट्स पेबल टीम है, उनको रिक्वेस्ट डाल दी कि भाई तुम इस वेंडर की पेमेंट निकाल दो. पकड़ा ये कहां गया, जब 2 या 3 दिन बाद इस नकली ग्रुप CEO ने दोबारा फोन किया और बोला थैंक यू सो मच, उस वेंडर की पेमेंट होगी, अभी जो दूसरा जो फलाना वेंडर है इसकी भी पेमेंट काफी टाइम सेट हुई है, इसकी भी रिलीज करवाओ. जब इस बंदे ने अपनी अकाउंट्स टीम को फोन किया, क्योंकि थैंक यू तो नीचे भी पास ऑन करना बनता है, तो इसने भी बोला थैंक यू, पिछले वेंडर की पेमेंट तुमने जल्दी कर दी, अब एक और करनी है. उसने कहा सर ठहरो तो सही, अभी पिछले की कहाँ करी, कहाँ है हमने, वो तो हमारी इंटरनल अप्रूवल में अटकी पड़ी है. फलाना मैनेजर जो है वो छुट्टी पे था इसलिए अप्रूव नहीं हो पाया, लेकिन सर आज कर देंगे. उसने कहा ठहर जा यार, तो मेरा ग्रुप CEO की कैसे बोल रहा है कि थैंक यू सो मच कि तुमने पेमेंट करवा दी. तो फिर देन ही लुक्ड एट द नंबर कि किस नंबर से फोन आया है. That number was of some place in Austria. Then this guy he checked with the EA of the group CEO कि साहब आज की डेट में कहाँ हैं, तो पता लगा he is not supposed to be in Austria. तो नंबर जो कंट्री कोड था वो ऑस्ट्रिया का था, बट द CEO was not supposed to be in Austria. So that's when this Germany का CEO, इसने अपने CEO के असली मोबाइल पे मैसेज डाला कि बॉस ऐसे ऐसे आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, इसको प्रोसेस करूं कि नहीं करूं. कह रहा मैंने कब बोला. सो ये पुलिस केस भी फाइल हुआ एंड इट वाज इन मीडिया एज वेल, सो यू कैन चेक दैट. तो दोनों तरीके से, अब आप इसमें बोल सकते हो कि ये कौन सी बड़ी बात है, तो जॉनी लीवर भी करता था, नहीं आवाज चेंज कर लेना. सो when it was checked, it was not the case of someone changing the voice, it was actually with the deepfake technology. It was such a beautiful crystal clear case कि जो उसका डायरेक्ट रिपोर्ट है वो भी बेचारा पहचान नहीं पाया कि ये मेरा बॉस है या कोई और, जॉनी लीवर टाइप बंदा कोई एक्टिंग कर रहा है. So that was about deepfake. What else? हाँ जी, this is, this screenshot, quick 1 minute I will spend on that. This screenshot is from Future of Jobs report of World Economic Forum. I am a big fan of it. आपको फ्री में मिल जाएगी गूगल पे.
कल संडे है, अगर 5-10 मिनट आप लगा के इसको स्क्रॉल कर लेना, इसमें शायद 20-25 पेज की ये रिपोर्ट है। एक चीज़ में इसमें मैसेज एक चीज़ का बहुत क्लियर है। ये क्या बोलता है कि जिन चीज़ की डिमांड कम हो रही है वो है अमंग अदर थिंग, उसने 13 चीज़ों की लिस्ट बनाई है, उसमें हमारे से रेलेवेंट है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, accountants and auditors. And why I am saying so? Because there are many businesses, there are many CA firms in India who have taken the outsourcing work of accounting, bookkeeping of many small mid-sized companies as well. कल को they may get disrupted. कैसे? कोई एक स्टार्टअप आ सकती है जो बोले या मेरा टूल ही ले लो या मेरा बॉट ले लो, ये मेरा बॉट ही कर देगा, आपको किसी सीए फर्म को देने की क्या जरूरत है। हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो इसकी जो है डिमांड, इसका प्रीमियम बढ़ रहा है, डिमांड है, प्रीमियम कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। स्पेशल स्किल सेट नहीं चाहिए इसमें, या लेकिन किस चीज का प्रीमियम बढ़ रहा है? प्रीमियम बढ़ रहा है, अच्छा आपने उधर देखा नंबर 11 पे जिसका प्रीमियम कम हो रहा है उसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट भी है। जबकि आप सोच रहे होगे यार जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है फाइनेंशियल एनालिस्ट तो ज्यादा चाहिए ना, क्योंकि एडवाइस भी तो चाहिए। हर कोई थोड़ा बैंक एफडी बनाएगा, हम बैंक की एफडी में थोड़ा पूरा पैसा से पूरी सेविंग डालेंगे। पैसा कहाँ डालें? म्यूचुअल फंड में डालें कि रियल एस्टेट में डालें कि बिटकॉइन में डालें? कोई सलाह देने के लिए होना चाहिए। वो कौन देगा? फाइनेंशियल एनालिस्ट देगा। बट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो गलत बोल रहा है, वो बोल रहा है कि फाइनेंशियल एनालिस्ट का प्रीमियम कम हो रहा है। ऐसा क्यों बोल सकता है वो? हाँ जी, क्यों बोल सकता? हाँ जी सर, वो काम तो डेटा एनालिस्ट भी कर सकता है। सही है सर, और बताइए एक और शार्प रीजन सर। वन ये सर, AI tools, yeah, same thing, AI tools. Even financial analysts would not have the access to some of the data that even the current systems would have. So Okay. They are in a better position to give you finer advice than the financial analysts today. नहीं, सिस्टम के पास डेटा एक्स्ट्रा नहीं आ सकता, और डेटा तो किसी को देना ही पड़ेगा, है ना। ये रीजंस मोर क्लोजर हैं। सी, अगर आप इफ़ यू जस्ट क्लोज योर आइज एंड टेक अ स्टेप बैक, आपके जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं दे ऑल हैव सम क्राइटेरिया विच दे फॉलो। वो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कुछ मंत्र बोला और बोला चलो कल रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं है। कुछ पैरामीटर्स हैं, दे इवैल्यूएट, करेक्ट। उनमें से 10, 15, 20 पैरामीटर्स तो आपने भी सीए करने के टाइम पढ़े थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उनके पास 40-50 और होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज वो सारे के सारे मेजरेबल क्राइटेरियाज हैं, करेक्ट ना। चाहे आप पी रेशो की बात करो, पेग रेशो की बात करो, डेट इक्विटी की बात करो, कोई भी निकाल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लगाएं और जो बीकॉम ऑनर्स वाला लड़का लगाए वो डिफरेंट हो जाएगा, नहीं होगा। सेम फॉर्मूला सेम है, बस यही फर्क पड़ सकता है कि कितने फॉर्मूले लगाने हैं, कौन सा बेटर फॉर्मूला है, भाई इतना फर्क पड़ सकता है। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट जो हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट जो भी वो फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, दैट फॉर्मूलाज आर गेटिंग ऑटोमेटेड थ्रू वेरियस टूल्स। आप चाहे उनको एआई टूल बोल लो या रोबोटिक्स बोल लो, टेक्निकल डिफरेंसेस पीछे रहते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है वो। या रियल जो काम बचा है वो ये बचा है कि अगर ये इतना आसान होता कि आपने खाली 20-20 रेशो देख के इन्वेस्ट कर देते और वही कंपनी चल रही होती, तो आज की डेट में एवरीबडी वुड हैव बीन मिलियनेयर ना, बिलियनर, करेक्ट। तो खाली वो रेशोज इंपॉर्टेंट नहीं है, उन रेशोज के बियॉन्ड, बिकॉज ये रेशोज खाली बताते हैं आपको अबाउट फ्यूचर या पास्ट। पास्ट, दैट इज द प्रॉब्लम। अब क्या होता है, हम जब ये देखते हैं कि इस कंपनी का एबिटा मार्जिन सपोज 40% है, अरे ये तो पास्ट में था ना। हर कोई बोलता है पास्ट इज नॉट द गारंटी ऑफ द फ्यूचर। तो आपने उसके बेसिस पे अगर सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, पता लगा अगले दिन कोई कॉम्पिटिटर आ गया। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जब मैंने एक कंपनी थी उसमें जब इन्वेस्ट किया, क्या नाम थी वो, पावर ट्रेडिंग कंपनी है, इंडिया में एक ही थी उस टाइम पे। विच वन? IEX, करेक्ट। वो मैंने उसमें धड़ल्ले से उसमें पैसा लगाता गया, हर महीने लगाता गया। वो बाद में किसी समझदार आदमी ने बोला कि भाई अगर इसमें इतना प्रॉफिट होगा तो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट आएगी बीच में, तो पैसा रोक ले। अब मैंने मन ना, टेक्निकली मैं उससे एग्री नहीं कर रहा था, मैंने फिर भी क्योंकि वो मेरे से सीनियर था मैंने बात मान ली और मैंने रोक लिया इन्वेस्टमेंट। निकाला नहीं, रोक लिया। जो उसने बोला आज वही ठीक प्रूव हो रहा है।
और मेरे को पेन ये है कि मैंने उसकी बात बहुत लेट सुनी क्योंकि मैं काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुका था। तो द पॉइंट इज मैंने इन्वेस्टमेंट किया बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, उसके सारे रेशोज आप 1 साल पहले तक देख लो IEX का, IEX कंपनी में अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुपर डुपर, ऐसा लगा कि मतलब और कहीं इन्वेस्ट ना करो, बस इधर ही कर लो, बट दैट वाज अबाउट पास्ट। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई भी एक बिजनेस है उसके चलने में गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसके फ्यूचर में कॉम्पिटिटर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, सॉरी मार्केट डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जियो पॉलिटिकल रोल प्ले फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर नॉट गेटिंग कैप्चर्ड इन दोज, बट सो एंड दैट इज व्हाई यू विल सी जितने भी ये मेजरेबल क्राइटेरियाज हैं दे ऑल आर गेटिंग ऑटोमेटेड इन दीज टूल्स। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लो आज के डेट में, ग्रो की बात कर लो, एमस्टॉक की बात कर लो, IND मनी की बात कर लो, देयर मैनी, कोई लिमिट नहीं है। तो बेस्ड ऑन दैट दे गिव यू देयर ओन रेटिंग, बट ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने बोला कि हमारे रेटिंग के हिसाब से ये टॉप में है वो ही सही इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होगा। बट जो ये बेसिक काम है, इस काम के लिए जो फाइनेंशियल एनालिस्ट की जरूरत होती थी वो जरूरत खत्म हो गई है, एंड दैट इज व्हाई दे आर सेइंग डिमांड कम हो रही है। डिमांड जीरो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि एडवाइस देने के लिए, उस एनालिसिस के बाद एडवाइस देने के लिए आपको तभी भी बंदा चाहिए, बट उस बंदों की क्वांटिटी कम हो गई, नंबर ऑफ दोज पीपल रिक्वायर्ड हैव नाउ गॉट रिड्यूस्ड। बट देखिए इंक्रीजिंग प्रीमियम किसका है? इंक्रीजिंग प्रीमियम है डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, AI मशीन लर्निंग, बिग डेटा स्पेशलिस्ट। मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्यों इनकी डिमांड ज्यादा है, इनका प्रीमियम बढ़ता जाएगा, बिकॉज जो भी डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है इट इज ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम, और अगर आप कस्टमर की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिसके लिए कस्टमर आपको पैसा देने के लिए तैयार है, तो आपकी डिमांड कम हो ही नहीं सकती। अगर आप डेटा ड्रिवन इसलिए हो क्योंकि हर कोई डेटा से खेल रहा है तो मैं भी खेल रहा हूं, फिर कोई फायदा नहीं है। या सो दैट इज व्हाई डिमांड ऑफ लेफ्ट साइड में जो 3 है इनकी कम नहीं होगी। और क्या है जी? Any question? We have another 10 odd minutes. While I have some examples to share with you, yeah, maybe I will share some examples. But उससे पहले, हाँ जी, सर आपने you raise your hand first, हाँ जी। आप सर माइक ले लीजिए, हाँ जी। Currently, I am into a traditional practice, and I am having a mid-size firm, or I can say small-size firm. So, and I don't have that much work. I'm not saying I don't have any work like related this, but after 5 years, it may be chances that work will increase as all of are using data tools and all that. So work is definitely going to be work, and it will be on the data driven only. So currently, what should I have to do? So after 5 years, I can also be a part of competition. In data space or in data? Yes. कल I was having this discussion, very relevant question. तो आप क्वेश्चन समझ गए ना एवरीबडी, कि ये तो हम हर किसी से सुन रहे हैं कि डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस में बहुत स्कोप है, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करें? यही क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट आज कैसे करें सो दैट टुमारो वी आर देयर एज अ गुड कॉम्पिटिशन, करेक्ट ना? यही आपका क्वेश्चन। इसमें ना some of the chartered accountants, some of the practicing CAs, they have this notion कि डेटा एनालिसिस का तो जो काम आएगा बड़ी कंपनी से वो बिग 4 को ही जाएगा, करेक्ट ना? वो बिग 4 को काम देंगे, हमारे को क्यों देंगे? येस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दैट? ओनली 1 2, है ना? सेफ है ना? और क्योंकि कंपनी, बड़ी कंपनीज को वो भी चाहिए, ब्रांड भी तो चाहिए कि हमने KPMG से करा लिया, डिलॉयट से करा लिया, येस और नो? है ना? नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीजन है multinationals and other big corporates, they need brand name only where stamp चाहिए, जहां पर स्टैम्प चाहिए। स्टैम्प किस में चाहिए होते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट में। फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिट में भी स्टैम्प नहीं चाहिए। दैट इज व्हाई यू विल सी देयर आर मेनी नॉन बिग 4 ऑडिट फर्म्स इन इंडिया, इंडियन फर्म्स which are doing internal audits of many big companies in India. Yes or no? Yes. But statutory audit में हो सकता है नंबर कम हो, करेक्ट? उसका रीजन है बिकॉज उनकी जो पेरेंट कंपनी है दे मे नॉट बी नोइंग गुड इंडियन फर्म, और दे वांट टू हैव वन फर्म ग्लोबली। फॉर एग्जांपल अगर उनका
यूएस में डिलॉयट कर रहा है तो वो कहते हैं यार सेम ही ऑडिटर रखो, नहीं तो फाइटिंग होती रहेगी, ये होता रहेगा। जहां पर उनको स्टैम्प चाहिए, प्लस जहां पर उनको अपने इन्वेस्टर्स को दिखाना है। उसके अलावा every company at every other place they want to hire good talent and they want to hire it at lower cost। प्रैक्टिकल है, बिकॉज किसी के पास भी अनलिमिटेड बजट नहीं है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू इंप्रूव देयर बॉटम लाइन, और बॉटम लाइन तभी इंप्रूव होगा अगर सेल तो बढ़ रही है, साथ में खर्चे भी कम किए जाएं। हर काम के लिए थोड़ा ना बिग फोर को हायर किया जाता है, हम भी नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता है। एंड स्पेशली इन द स्पेस ऑफ डेटा एनालिसिस मैनी कंपनीज ट्राई स्टार्टअप्स, या वो ट्राई करते हैं। वो ट्राई करने का सबसे इजी तरीका क्या है? यू हैव टू बी ओपन टू डू फ्री प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसमें आपके शायद हफ्ता या 2 हफ्ते का टाइम कॉस्ट लगे। जैसे कोई भी जब नई कंपनी आती है, उसने या किसी कंपनी ने अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, सपोज यूनिलीवर का सोप नहीं था, उसने नया सोप लॉन्च किया, तो क्या करेगा? जगह जगह काउंटर लगा के आपको एक सोप फ्री दे देगा। इट्स अ कॉस्ट ना, बट दे आर डूइंग एडवर्टाइजमेंट, दे आर शोइंग कि हमारा सोप इज वर्थ योर मनी, या तो दे आर गिविंग वन फ्री सैंपल। तो व्हाट मेनी स्टार्टअप्स इन द स्पेस ऑफ डेटा साइंस व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेइंग आपको डाउट है कि मैं डिलीवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट, क्योंकि आपने इनका काम नहीं देखा है। तो उसी तरह से आपके फ्यूचर क्लाइंट्स ने आपका काम नहीं देखा इन द स्पेस ऑफ डेटा, तो आप उनको कंफर्ट ऐसे दे सकते हैं कि आप अमंग 10 डिफरेंट प्रॉब्लम्स यू वांट टू सॉल्व, आप उसमें से कोई एक प्रॉब्लम मुझे दे दो जिसमें मेरा हफ्ते 2 हफ्ते का एफर्ट लगेगा, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूं। दैट विल डेवलप ट्रस्ट एंड दैट विल गिव कंफर्ट टू देम कि आप डिलीवर कर सकते हो। उसके बाद आप अपने कमर्शियल्स नेगोशिएट करके आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले पाओगे। और आपने किसी 1 या 2 ऐसे क्लाइंट्स पे किया, दैट यू कैन देन यूज टू मार्केट विद अदर कंपनीज। तो यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विद स्मॉल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट विच इज लाइक अ फ्री गिफ्ट फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग विद द बिगर कॉर्पोरेट्स। उस तरह से आपको धीरे धीरे करके बढ़ना होगा। और डेटा साइंस में आपको घुसना पड़ेगा। इफ समवन वांट्स टू मेक डेटा एज देयर मेन स्ट्रीम फॉर देयर फर्म, आप यू हैव टू गो बियॉन्ड व्हाट यू हैव लर्न्ड सो फार इन द डेटा स्पेस। आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना पड़ेगा टू सम एक्सटेंट, आपको वो कोडिंग वगैरह की नॉलेज होनी पड़ेगी। नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड नो कोड लो कोड भी आ रहे हैं, राइट? बट प्लीज अंडरस्टैंड, नो कोड लो कोड यूज करने के लिए आपको समझ तो होनी चाहिए ना कि वो कर क्या रहा है बैकग्राउंड में। जैसे हमें पता है कि कैलकुलेटर तो कब से है, राइट? बट हम आज की डेट में भी अपने बच्चों को स्कूल में मैथमेटिक्स तो हाथ से ही सिखाते हैं ना। बच्चों के स्कूल में हम टीचर्स को या प्रिंसिपल को थोड़ा ना जाके बोलते हैं कि क्यों सिखा रहे हो मेरे बच्चे को मैथमेटिक्स, उसने जिंदगी में तो करना नहीं है। जिंदगी में इवन 2+2 के लिए भी शायद वो कैलकुलेटर यूज करे बाद में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आज क्यों सिखाते हैं? ताकि कैलकुलेटर क्या कर रहा है बच्चे को पता तो रहे। उसी तरह से कल फ्यूचर इज ऑफ लो कोड एंड न्यू कोड, वो तो फैक्ट है, राइट? बट उसका ये मतलब नहीं है आपको पता ही ना हो कि वो पीछे कर क्या रहा है। नाउ डज दैट मीन यू हैव टू बिकम वर्ल्ड बेस्ट इन क्लास पाइथन एक्सपर्ट और आर एक्सपर्ट? वो जरूरी नहीं है, बट फंडामेंटल्स तो पता होने चाहिए कि वो कर क्या रहा है, उसकी कैपेबिलिटी क्या क्या है, क्या उसके लिमिटेशंस हैं। पाइथन और आर में से अगर आज की डेट में बोला जाता है कि पाइथन बेटर है, तो क्यों बेटर है? आर में क्या प्रॉब्लम है? फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से व्हेन आई यूज आर, मेरे को विजुअली आर बेटर लगता है पर्सनली, आर। बट उसकी लाइब्रेरीज लिमिटेड है, यानी कैपेबिलिटी उसकी आज की डेट में लिमिटेड है, क्योंकि पाइथन में लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा है, या इसलिए पाइथन की कैपेबिलिटी डिफरेंट है, आर की थोड़ी सी लिमिटेड है, इसलिए वो थोड़ा अभी पीछे है। तो आपको पता होना चाहिए। बट आप आज की डेट में मेरे को बोलो कि राजीव इस सेशन के बाद 10 पेज का कोड लिख दे, आई मे बी स्लो, वेरी स्लो इन राइटिंग द कोड, क्योंकि मैं डेली कोडिंग नहीं करता हूँ, राइट? बट मुझे पता है कि अगर मेरे को कोई कोड दिया जाएगा तो उसमें हो क्या रहा है, तो वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एंड दैट इज वेयर यू नो दोज ऑफ यू हु वांट टू बी रियली वांट टू टेक दिस सीरियसली, स्टैटिस्टिक्स टू सम एक्सटेंट प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। कोई एक लैंग्वेज ले लो, सारी बिल्कुल जरूरत नहीं होती। पाइथन ले लो, आर ले लो, आपको एक क्वेरी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, एसक्यूएल। अगेन यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट, बट एक आना चाहिए। और 2 आज की डेट में मेन विजुअलाइजेशन टूल्स हैं, उनमें से कोई एक आना चाहिए आपको, पावर बीआई या टैबलू। बहुत ईजी हैं दोनों। पावर बीआई का ये एडवांटेज है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्वीट लेते हैं तो उसके साथ आज की डेट में बंडलिंग में फ्री आता है, मतलब उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। सो ओवरऑल इट इज़ मच मोर इकोनॉमिकल।
टैबलू का आप ये कर सकते हैं, समहाउ यू कैन गेट अ स्टूडेंट्स वर्जन। स्टूडेंट वर्जन 1 साल के लिए फ्री रहता है, फुल वर्जन। या तो जैसे अगर आप डेटा साइंस के प्रोग्राम में कहीं भी एनरोल करते हैं, दे गिव यू दैट स्टूडेंट आईडी, तो वो जो आपको की मिलती है वो की के थ्रू यू गेट 1 ईयर, एंड देन यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट देम टू फर्दर रिन्यू इट फॉर अनदर 1 ईयर। सो उससे आपको ये पता लग जाएगा। टैबलू की बात कर रहा हूँ बिकॉज उसका लाइसेंस थोड़ा एक्सपेंसिव है। पावर बीआई तो ऑलमोस्ट फ्री है। पावर बीआई का विजुअल थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू टैबलू, बट अगर फ्री में मिल रहा है तो नो प्रॉब्लम। एंड इट ऐसा नहीं है कि टैबलू इज 100 एंड पावर बीआई इज 40, नो, इतना डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, बट यू नो पावर बीआई ऑल्सो कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू, या दैट वे। एक क्वेश्चन ये था, हाँ जी सर, इधर था एक और क्वेश्चन था ना, आप में से किसी का था क्वेश्चन? अच्छा आपका था, हाँ जी। हेलो। सो सर एक प्रॉब्लम है कि लाइक ठीक है, वी हैव SAP ERP एंड देन वी हैव इम्प्लीमेंट, हमने SQL इम्प्लीमेंट किया एंड देन SAP के टेबल से डेटा को पावर BI में विजुअलाइज कर दिया। नाउ द टू चैलेंज वी हैव, वन इज़ लाइक फॉल्स पॉजिटिव and user wants to put remarks in the collaborative approach and not only one way approach. Now in Power BI for us is a problem is one way approach. Second thing is false positive, the exception volume is high. So how to address these two things? बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इजी वाला पहले बात कर लेते हैं। टू वे अप्रोच, वो चाहे आप टैबलू ले लो, पावर बीआई ले लो, दे आर वन वे कम्युनिकेशन प्राइमरली, राइट। तो उसमें आई डोंट नो कि आप कमेंट्स वगैरह डाल के क्या एडवांटेज ले पाओगे, ऐसा कैपेबिलिटी है भी नहीं है, मैंने नहीं देखा है, तो मेरे हिसाब से वन वे ही है। इट इज़ मोर अबाउट गिविंग विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ वेदर इट इज़ एक्सेप्शंस, वेदर इट इज़ रेड फ्लैग और इट इज़ स्टैटिस्टिक्स, व्हाटएवर। तो दैट्स वन। उसके लिए आपको नहीं, अगर आप रिमार्क्स चाहते हो तो आपको नॉर्मल जो GRC टूल्स होते हैं ना, उनमें से कोई आपको लेना पड़ेगा, राइट। वो एक ऑफलाइन डिस्कस करते हैं। पहली बात, पावर बीआई टैबलू वन वे कम्युनिकेशन ही है। या कमिंग टू योर फॉल्स पॉजिटिव, ये जब भी आप फर्स्ट टाइम कोडिंग करोगे ये होगा ही होगा। हाउ मच फॉल्स पॉजिटिव यू विल हैव इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ क्लोजली यू वर्कड विद द प्रोसेस ओनर। दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। आप प्रोसेस ओनर से के जितना क्लोजली काम करोगे, द क्वांटम ऑफ फॉल्स पॉजिटिव विल बी लेस, नंबर वन। नंबर टू, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप एनालिसिस किस चीज का कर रहे हैं। देर आर ब्रॉडली, लेमैन लैंग्वेज में मैं बात करूं, 3 तरीके के एनालिसिस हैं। एक है एग्जैक्ट एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट वेंडर मास्टर, या उसमें अगर आप बोलें कि नाम सेम है, GST नंबर सेम है, पैन नंबर सेम है फॉर एग्जांपल, तो इट्स ऑलमोस्ट 100% की एग्जैक्ट एक्सेप्शन है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि ये 2 अलग आदमी हैं, नहीं हो सकता। सेकंड है, आप पोटेंशियल डुप्लीकेट निकालना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि सर हम क्या करेंगे, नेम पे डुप्लीकेट लगाएंगे, प्लस एड्रेस पे डुप्लीकेट लगाएंगे, प्लस पिन कोड पे डुप्लीकेट लगाएंगे। हाइपोथेटिकल सिनेरियो मानते हैं, फजी लॉजिक। इसमें हो सकता है ना कि सेम पिन कोड में 2 राजीव गुप्ता रहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों के स्पेलिंग भी सेम हो सकते हैं, या स्पेलिंग डिफरेंट भी हो तो भी 2 अलग इंसान हो सकते हैं। ये हो गया एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल ऑफ रेड फ्लैग। मेरा आपको सजेशन है, जब आप अपनी डेटा एनालिसिस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये रेड फ्लैग वाले कम ही करें तो बेटर है। आप श्योर शॉट एक्सेप्शन वाले पहले स्टार्ट करें, दोज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स। उससे एक तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, नंबर 2 आपका जो क्लाइंट है उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप जब भी किसी भी प्रोसेस को पकड़ेंगे उसमें, अच्छा तीसरा होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, हमारा कल माल कितना बिका, हाउ मच सेल वी हैड येस्टरडे, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट लेबर केम येस्टरडे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का इन टाइम क्या था, आउट टाइम का था। ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, बहुत सारे। जब आप एज एन ऑडिटर आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा विच हैट यू आर वियरिंग। आर यू वियरिंग हैट ऑफ बिजनेस एनालिस्ट और यू आर वियरिंग हैट ऑफ रिस्क एनालिस्ट। अगर आप रिस्क एनालिस्ट की हैट आपने वियर की हुई है तो टू गेट कॉन्फिडेंस आप स्टार्ट करिए श्योर शॉट एक्सेप्शन से। वो हो सकता है आउट ऑफ 100 एनालिटिक्स शायद 10 ही मिले आपको ऐसे, बाकी 70-80 हो सकता है रेड फ्लैग्स वाले हों। बट बिलीव मी, आप उससे उसको आपको और जो आपके क्लाइंट को जो आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, दैट वुड गिव यू अ बूस्ट। एंड देन जो रेड फ्लैग्स वाले हैं उसमें प्लीज वर्क क्लोजली विद द प्रोसेस ओनर। हर बिजनेस में
देर आर वेज टू ओवरराइड द कंट्रोल. सपोज आपने तो कंपनी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पढ़ के आपने अपना एनालिटिक्स बना लिया. तो कंपनी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलता है कि अगर किसी एक सेलर का हमने पीओ प्राइस 5% से बढ़ाया एज कंपेयर टू लास्ट परचेज, या तो वो अलाउड ही नहीं है, हमारा सिस्टम ब्लॉक कर देगा. तो आपने उसको एक्सेप्शन में डाल दिया, यानी आपने अपना जो कोड बनाया आपने उसमें बोला दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है, और आपने उसको एक्सेप्शन दिखा दिया. क्लाइंट ने बोला नहीं ये तो होता है हमारे यहाँ पे. तो आपका वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि अरे कभी होता है तो तुम करते क्या हो. तो उन्होंने बताया कि सर हमारे एसएपी में क्या होता है, इफ द प्राइस डिफरेंस इज मोर देन 5% तो एक एडिशनल लेवल ऑफ अप्रूवल पे जाता है एसएपी के अंदर ही. तो वो एडिशनल बंदे ने अप्रूव कर दिया तो देन इट इज अलाउड. तो देन जो आपने एनालिसिस बनाया दैट इज इनकम्प्लीट. तो आपको ये बोलना पूछना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा हार्ड स्टॉप कहां पे है. हार्ड स्टॉप मीन्स कि ऐसा कितना परसेंटेज इंक्रीज है विच इज एब्सोल्युटली नो नो. तो उन्होंने बोला 20% कि सर 20% से ऊपर होगा तो किसी के पास भी अप्रूवल अथॉरिटी नहीं है. तो दैट 20% इज देन योर एग्जैक्ट एक्सेप्शन, यानी एनी पीओ रेज इन द सिस्टम बियॉन्ड 20% वो तो श्योर शॉट एक्सेप्शन है. अब आप बोलोगे सर उसमें एक्सेप्शन आएगा ही नहीं क्योंकि आप प्रोसेस ओनर ने बोला कि ये तो अलाउड ही नहीं है, किसी के पास अप्रूवल अथॉरिटी नहीं है. तो आप जो एनालिसिस बोल रहे हो तो यूजलेस एनालिसिस है बिकॉज इसमें एक्सेप्शन ही नहीं आएगा. यस और नो, करेक्ट ना. तो क्यों बोल रहे हो, क्यों बता रहे हो ऐसा एनालिसिस करने के लिए. करेक्ट करेक्ट सर जी, चाहे आप एसएपी पे काम कर रहे हैं, ओरेकल पे कर रहे हैं, किसी पे भी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो यूजर डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट दी फॉर द कॉन्फ़िगरेशन और फॉर द कोडिंग वो सही, कंसिस्टेंट और परवेसिव मैनर में हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लगाई गई, ये जरूरी नहीं है. आइए आप लिख लो. जब तक आप खुद चेक नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग पीपल हैव, कंपनीज रनिंग ऑन एसएपी दे हैव इज हमारे पास एसएपी है तो 3-वे मैच तो चल ही रहा होगा. सबसे बड़ा मिथ यही है. और अब आप बोलोगे नहीं सर आप गलत बोल रहे हो क्योंकि मैंने खुद ने टेस्टिंग करी थी एक सैंपल रन करके. है आप में से किसी ने कभी टेस्टिंग करी है एसएपी में 3-वे मैच? पास हो गया था आपका 3-वे मैच? थोड़ा थोड़ा पास हो गया था. ये थोड़ा भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने चैलेंज किया अभी, वैसे तो पूरा पास हो गया था. वो थोड़ा इसलिए पास हुआ था, आपकी टेस्टिंग में जो पास हुआ, आपकी टेस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं थी, सिनेरियोस पूरे नहीं कवर किए होंगे. तो जब भी एसएपी इंप्लीमेंटेशन होता है देयर आर मेनी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस व्हिच हैव टू बी देयर. फॉर एग्जांपल बेयर मिनिमम एनी कंपनी विल हैव 3 कॉम्बिनेशंस. पहला गुड्स, फर्स्ट बकेट, सेकंड बकेट सर्विसेज. दोनों के 3-वे मैच की क्वालिटी में फर्क है. गुड्स के अंदर 2 वैरायटी है. वो गुड्स जो सेल करने के लिए हैं जिसको कंपनीज बोलती है कैटेगरी प्रोक्योरमेंट, मींस जो इनका मेन बिजनेस है. सेकंड वो गुड्स विच आर फॉर कंजम्पशन, कंज्यूमेबल्स, राइट. सपोज कोल्ड ड्रिंक्स खरीद ली, टी बैग्स खरीद लिए, मिल्क पाउडर, स्टेशनरी, ऑल दिस थिंग्स, दीज आर कंज्यूमेबल्स, दीज आर ऑल्सो गुड्स, दीज आर कंज्यूमेबल्स. कंपनीज को इस तरह के गुड्स पे जो कंट्रोल चाहिए, 3-वे मैच चाहिए, बहुत वीक चाहिए. बिकॉज कितना होगा, अगर आउट ऑफ से 100 करोड़ का उन्होंने टोटल परचेज किया होगा तो मे बी शायद 1 करोड़ होगा शायद, राइट. सो दे डोंट वांट दैट स्ट्रिंजेंट 3-वे मैच ऑन दीज टाइप ऑफ गुड्स वर्सेज जो असली माल जो बेचते हैं जिसकी 80 करोड़ की 80% ऑफ प्रोक्योरमेंट जहां पर हो रही है. सिमिलरली सर्विसेज में जो 3-वे मैच होता है वो अलग होता है. तो बेयर मिनिमम 3 है, लेकिन हर कंपनी में 20 से ज्यादा, सर नोट कर लीजिए, 20 से ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं 3-वे मैच के. तो जब भी आप उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, सबसे पहले तो आप ये पता कर लें कि एक्चुअली हैं कितने कॉम्बिनेशंस, और हर कॉम्बिनेशन का एक सैंपल टेस्ट आपको करना पड़ेगा टू गेट कंफर्ट ऑन व्हाट, ऑन द क्वालिटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन. उसके बाद अगर आपको वो कंफर्ट आ गया, उसके बाद ये एनालिसिस नहीं चाहिए जो मैंने बोला है. करेक्ट करेक्ट रॉन्ग, फिर भी चाहिए. क्यों चाहिए मैडम, क्यों चाहिए? कैसे? यू राइट, एब्सोल्युटली. टाइमिंग डिफरेंस सर. व्हाई? क्योंकि एसएपी तो कभी भी खोला जा सकता है. देयर इज अ टी कोड, जो कोडर्स रहते हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनको पता है कि 2 कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो कभी भी एसएपी का दरवाजा खुल सकता है. वो एसएपी का दरवाजा खोल के वो कॉन्फ़िगरेशन जो उन्होंने ये सेटिंग चेंज करी थी, जो सेटिंग करेक्ट कर रखी थी, उस सेटिंग को खराब कर देंगे. अपने जो परचेज ऑर्डर्स निकालने हैं, जो अपने जो जिनके साथ कोल्यूशन है,
उनका जो GRN करवाना है, इन्वॉइसिंग करानी है, करा के दोबारा वो उन्हीं 2 टी कोड से दरवाजा बंद कर दिया। और आप कब आओगे, साल में कितनी बारी आते हैं आप? 2 बार। 2 आपने बहुत अच्छा बोला, वैसे तो 1 बार ही होता है, चलो 2 बार भी आ गए तो आप साल में सिर्फ 2 ही दिन उसको चेक करेंगे। रिमेनिंग 363 डेज उसने कितनी बारी दरवाजा खोला, कितनी बारी दरवाजा बंद किया, आपको नहीं पता लगेगा। सो जस्ट टू समराइज, मेनी पीपल हैव दिस नोशन कि अगर मैं केयरफुली नोट करना, अगर कोई ऑटोमेटेड कंट्रोल मेरे सिस्टम में चल रहा है और मैंने टेस्ट किया है तो उस केस में मुझे डेटा एनालिसिस नहीं चाहिए। ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। डेटा एनालिसिस इसलिए चाहिए, जैसा आप लोगों ने बोला, आप जो कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, यू ऑलवेज चेक ऑन पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम ऑन अ पर्टिकुलर डे, यू डोंट चेक इट थ्रू आउट द ईयर। सो इट इज ओनली योर डेटा एनालिसिस विच गिव्स यू दैट कंफर्ट कि इवन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर अगर 1 मिनट के लिए भी किसी ने वो दरवाजा खोला होगा और उसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस निकाल दी तो कौन पकड़ लेगा? आपका DA पकड़ लेगा और कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को रहती है, आप वो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सेफ फ्रॉम दैट। सो वी आर डन विद द टाइम। मैं क्वेश्चन ऑफलाइन लूँ कि अभी ले सकते हैं, बताइए। हाँ, कोई कैन टेक। अच्छा, हाँ जी सर। आप ही ने दिया सर उसको डेटा, आप ही ने दिया है, और उसको नहीं दिया, आपने सोशल मीडिया साइट्स को दिया है। एंड ही इज परचेजिंग योर इन्फॉर्मेशन। ओके, ही एक्चुअली डजंट नो योर नेम। ओके, सो मैंने भी एड्स चलाई हैं इस तरह से, मैंने खुद कॉन्फ़िगर किए हैं, तो मैं आपसे शेयर करता हूं। सपोज आप इस क्लास के बाद खुद की एक ऐड चलाना चाहते हैं, वेरी इजी, आप अपने नाम की पे भी ऐड चला सकते हैं। कोई भी फोटो उठा लीजिए, आप गए फेसबुक पे, इंस्टा पे, किसी भी चले जाइए, सबका प्रोसेस सेम है। तो आपको कुछ एक चीजें सेलेक्ट करनी है, आपको बताना है कि यू वांट टू रन दिस एड फॉर लाइक्स, फॉर व्यूज, फॉर लीड और फॉर सेल। चारों में से चारों अलग क्यों है? क्योंकि रेट अलग है। लाइक के कम पैसे हैं, व्यूज के और कम पैसे लेगा वो आपसे, लीड के थोड़े ज्यादा पैसे लेगा, और सेल के तो हो सकता है हजारों में भी ले ले, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोडक्ट यू आर ट्राइंग टू सेल। उसके बाद वो आपको बोलेगा हाँ बताइए आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। अब वो आपको सबसे पहले तो ज्योग्राफी सेलेक्ट करनी है। तो अगर आपने ज्योग्राफी में लिया पूरा वर्ल्ड, नहीं पूरा वर्ल्ड छोड़ देते हैं, आपने बोला अहमदाबाद, ठीक है। अब आप किस पे हैं? फेसबुक पे। अब फेसबुक को ये पता है कि अहमदाबाद में कितने यूजर्स हैं, और सपोज अहमदाबाद में भी आपने ये पिन कोड डाला मैरियट का, राइट। अब जितने भी लोगों के मोबाइल में फेसबुक है उतने, सपोज ये 200 लोगों के पास ही है और किसी के पास इस पूरी बिल्डिंग में फेसबुक नहीं है, तो वो बताएगा कि 200 पीपल यू विल बी एबल टू टारगेट। ये नहीं बताएगा कि जो उस रूम में, उस होटल में बंदा बैठा है, राजीव गुप्ता, नीरव, वो नहीं बताएगा, लेकिन कितने लोग बैठे हैं। फिर आपने बोला कि चलो मैंने लोकेशन फिक्स कर ली 200, इसमें आ गए 200, लेकिन आप कहते हो कि नहीं मेरा प्रोडक्ट जो है ना, वो प्रोडक्ट तो सिर्फ 18 से 25 साल के लोग ही यूज करेंगे। तो आपने वो फिल्टर जब अगले कॉलम में जाके वो फिल्टर डाला, तो कौन स्कैन कर रहा है? फेसबुक। उसके पास ऑलरेडी डेटा है, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हम सबकी है। आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपने सही डाली होगी क्या? तो सही डाली है, तो इन 200 में से सिर्फ 10 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। अब उन 10 लोगों का नाम नहीं उनको पता लगा, बट 10 लोग पता लग गए कि ये 10 मोबाइल फोन्स हैं। और बताता हूं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, जो कंपनीज या जो इंडिविजुअल्स प्रीमियम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर वो क्या यूज करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको वो कभी मिस नहीं करते, दे आर सेलिंग समथिंग प्रीमियम। एग्जांपल बताता हूं, आपको पता है कि जीन्स ऑन एन एवरेज 2 से 4 हजार रुपए में सारे खरीदते हैं। आपने नई जीन्स निकाली 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए की, और आपके ब्रांड का किसी को पता नहीं है। नाउ यू वांट टू टारगेट पीपल। सोशल मीडिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फिल्टरिंग क्राइटेरिया यूज होता है वो क्या है? कौन सा मोबाइल फोन? एब्सोल्युटली iOS। अब आप बोलेंगे, आप में से जिसके पास 1-1 लाख रुपए का एंड्रॉइड है नाराज हो जाएंगे, है ना, इस साला ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं नहीं खरीद सकता 50,000 रुपए की जींस? ऐसा नहीं है, परसेप्शन है। क्योंकि हर किसी को टारगेट नहीं, उनको नहीं पता नहीं ये कौन इंसान है, उनको तो अपनी टारगेट ज्योग्राफी कम करते जाना है।
और क्यों कम करना है? ताकि पैसा कम वेस्ट हो, क्योंकि एवरी व्यू, एवरी क्लिक, दे हैव टू पे मनी, दे मीन्स जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। तो बहुत सारे आपने जितनी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की हुई है, इंक्लूडिंग योर फोटोज, एवरीथिंग इज गेटिंग मैप्ड। हर आपकी फोटो भी डेटा में कन्वर्ट हो रही है, राइट? आपने सपोज एक फोटो खींची सिंगापुर में, अच्छा आपको पता है ना, जैसे आप फोटो खींचते हो ना तो उसका जियो कोडिंग अपने आप हो जाती है, हर मोबाइल में बाय डिफॉल्ट है, आप डिसेबल कर सकते हैं बट बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैप्चर हो जाता है, राइट? और वही फोटो आपने डाल दी इंस्टाग्राम में, हाँ मैं तो सिंगापुर में बैठा हूँ। अब इंस्टाग्राम ने क्या ट्रैक कर लिया कि ये आदमी सिंगापुर जा चुका है, फिर आपने यूएस की डाली तो यूएस जा चुका है। कल को अगर उनको प्रोफाइलिंग करनी है, इंटरनेशनल ट्रैवलर, और मैंने कभी भी जिंदगी में इंस्टा में अपनी सपोज बाहर की फोटो नहीं डाली, तो उनको लगेगा तो डोमेस्टिक ही है, उनको लगेगा ये बंदा घूमता रहता है। तो अगर उनको कोई इंटरनेशनल पैकेज की ऐड दिखानी है तो किसको दिखाएंगे? आपको दिखाएंगे। उनको ये नहीं पता आप कौन हो, आपका नाम नहीं पता, आपका प्रोफेशन नहीं शायद नहीं, प्रोफेशन पता हो सकता है, आपने बताया होगा, तो प्रोफेशन के बेस पे टारगेटिंग हो जाएगी, बट ये नहीं पता लगेगा कि आपकी एक्चुअल आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, राइट? डज इट हेल्प? ठीक है जी। सो दैट्स हाउ यू आर प्रोवाइडिंग डेटा, उनके पास और कोई सोर्स नहीं है। लास्ट क्वेश्चन सर ये लेंगे आप। हाँ जी, पैरामीटर्स ऑफ हैविंग data mining tools हाँ or the base tools are available which may be certified or any company certified their tools that we can use it in our profession, कंपनी सर्टिफाइड का क्या like मतलब हुआ? some any agency which certified that these softwares are like आप फेसबुक को किस एजेंसी ने सर्टिफाई किया? not किसी ने? that नहीं, आप बात समझिए, yeah सर्टिफाई को नहीं करेगा। आप आज की डेट में आप अपना खुद का टूल लॉन्च कर दीजिए, अब कोई ये नहीं पूछेगा ना आपका सर्टिफिकेट बताइए, है ना? वो अडॉप्शन के बेसिस पे है। okay अगर आपका टूल अच्छा होगा okay तो जो अर्ली यूजर्स होंगे वो अर्ली यूजर फीडबैक देंगे बाकी लोगों को, Yeah. तो उसके बेसिस पे फीडबैक के बेसिस पे चलता जाता है। तो सर्टिफाई कोई नहीं करता है। द ओनली थिंग इज देयर आर टू टाइप ऑफ टूल्स अवेलेबल, ओपन सोर्स एंड लाइसेंस बेस्ड। okay तो ओपन सोर्स में आपके आर, पाइथन, एक और नाइन, ये सब ओपन सोर्स के एग्जांपल्स हैं। तो देयर आर मेनी कंपनीज जो बोलती हैं कि हम ओपन सोर्स नहीं लेंगे, हम लाइसेंस वर्जन ही लेंगे। क्यों? ताकि उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आ जाता है जिससे लाइसेंस ले रहे हैं। yeah तो इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर सपोज उनका सिस्टम क्रैश हो जाता है, डेटा लीक हो जाता है, तो अगर लाइसेंस लिया है तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तो कुछ उसकी अकाउंटेबिलिटी डाल सकते हैं जिस कंपनी से टूल खरीदा। ओपन सोर्स के केस में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो Okay. सम कंपनीज से नो टू दैट। Okay, like sir, I've seen that to launch in any country our software, we require to follow some laws of their country to say your data is secured and such. So data is also in the data mining tools, are that safe or not? So I was just looking that anything which is do our government have that they need to have such kind of a certifications or anything. Based on that, any company rely on that certificate. Suppose we got an assignment to work on that data mining process, and then we got a tool, not a language that we follow, but any ready-made tools that we use to complete that assignment. So we can allegate to the company that they are, if it is a open source, then we can't allegate them, but in case they have a certification and it gets wrong. So that was my question related to any certifications. सर्टिफिकेशन आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि Okay. ये टूल्स सर्टिफाइड होते हैं नहीं होते हैं। Yeah, like similar, like. मैं एक दो आपको एक दो सजेशंस दे देता हूँ। Sure, sir. आई फॉर एग्जांपल व्हेन यू यूज टैबलू का जो फ्री वर्जन होता है उसमें क्या होता है, द डेटा इज ऑन पब्लिक क्लाउड इन केस ऑफ टैबलू। पब्लिक क्लाउड का क्या मतलब है? कोई भी आपका डेटा देख सकता है, बिकॉज आपने फ्री वर्जन लिया है। वो रिस्की है, उसमें तो आप 100% आपको एक पैसे का भी डेटा उस पर नहीं डालना है। आप उसमें खेल सकते हो, कोई भी नकली डेटा क्रिएट कर लो, डमी डेटा क्रिएट कर लो एंड यू प्ले जस्ट फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव। लेकिन जब आप एक अपना प्रॉपर लाइसेंस लेते हैं, दैट लाइसेंस कैन बी इवन एज अ स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया ना, अगर आप कहीं एनरोल करेंगे तो आपको एक स्टूडेंट लाइसेंस मिलेगा, दैट्स थ्रू अ प्राइवेट क्लाउड, या आपने पे करके लाइसेंस लिया। अच्छा, उसमें भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं टैबलू में। आप अपने लैपटॉप पे भी एनालिसिस कर सकते हैं, आप क्लाउड में भी कर सकते हैं, बट दोनों सेफ हैं।
लैपटॉप पे है तो लैपटॉप पे ही है, आप उसको अपने इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दिया तो यू आर ऑफलाइन। क्लाउड भी प्राइवेट क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड में अनलेस यू डाउट कि टैबलू का क्लाउड हैक हो जाएगा, वो एक अलग चीज हो गई, बट दैट इज सेफ बिकॉज यू आर यूजिंग द लाइसेंस वर्जन ऑफ इट। या तो जितने भी आप लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हैं, अच्छा इवन पाइथन एंड आर, इवन दो दे आर ओपन सोर्स, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन क्लाउड, यू आर डूइंग ऑन योर लैपटॉप। अब जैसे पाइथन का एक ऑनलाइन वर्जन है कोलैब, गूगल कोलैब, एग्जैक्ट कॉपी है, बट दैट इज ऑन क्लाउड, तो हो सकता है आप वो ना यूज करें, राइट? आप पाइथन यूज कर लें, बट मुझे नहीं पता है कि कोई एजेंसी सर्टिफाई भी करती है कि ये टूल सेफ है नहीं है, आई एम नॉट अवेयर, वो देखना पड़ेगा। एक लास्ट सजेशन गाइस, प्लीज अपने कंपनी का कोई भी डेटा चैट जीपीटी पे यूज ना करें अनलेस इट इज चैट जीपीटी 4.0। या 4.0 से नीचे जो भी है वो सारा पब्लिक है, बिकॉज आपने लाइसेंस नहीं लिया है। सो एनी अनलाइसेंस्ड वर्जन ऑफ चैट जीपीटी, एंड व्हाई आई एम सेइंग बिकॉज देयर आर सम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने सोचा कि रिपोर्ट भी वहीं से बनवाते हैं, राइट? बिकॉज चैट जीपीटी तो कुछ भी कर सकता है, एंड इट हैज हैपेंड। आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा, 2-3 महीने पुरानी बात है, किसी एक कंपनी का डेटा लीक हो गया। लीक क्या हुआ, उनके खुद के एम्प्लॉई ने सोचा कि चैट जीपीटी पे डाल देते, यही हमारे को बताएगा कि इस डेटा में प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम तो पता लगी, लेकिन डेटा चला गया एंड समबडी हैक द डेटा, और वो डेटा डार्क वेब पे बिक भी रहा था। सो यू कैन गूगल, आपको मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा बिकॉज द पर्पस इज नॉट टू डिफेम, द प्रॉब्लम इज इंसान को पता नहीं लगा कि कहाँ पर मुझे एक लिमिट ड्रॉ करनी है। चैट जीपीटी 4 वर्जन जो है 4.0 वो लाइसेंस्ड वर्जन है, लाइसेंस्ड वर्जन सेफ है, एंड दैट इज एक्चुअली मेंट फॉर कमर्शियल यूज। आप उसमें खेलिए जो मर्जी, आपको लाइसेंस मिलेगा, एंड दैट इज मेंट फॉर योर ऑफिशियल डेटा। बट मेरी सजेशन है उससे नीचे वाले जो वर्जन हैं, अनलेस यू आर बाइंग अ लाइसेंस, अपना ऑफिशियल डेटा उसमें बिल्कुल कुछ मत डालना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है जी, सो विल टेक अ पॉज हियर। अगर कोई फॉलोअप क्वेश्चन है विल टेक ड्यूरिंग द मे बी द लंच ब्रेक, and we are done with that. Thank you, sir, for the wonderful introduction. I'll request members to kindly be seated for a couple of minutes. Sir has taken so much pain and travel all the way to Ahmedabad for deliberation of the session. We can spare 2 minutes for the vote of thanks. Sir, I have been entrusted with the responsibility to propose a formal vote of thanks to Rajiv Gupta, sir. Sir, when in this conference we're talking about information technology and AI is taking all hue and cry, so from another AI, that is Ahmedabad branch of ICAI, I would like to take this opportunity to propose a very heartiest vote of thanks to Rajiv Gupta, sir, for your wonderful dedication. Sir, your ability to explain the complex subject of data visualization and data analytics in a very simplest way will surely help the members at large. Looking forward for more such interactions with you, sir, in future for Ahmedabad. Thank you so much, sir.